और ज़िया का इरा हर फोरम पे लोग बात करते हैं। मेरी मोस्ट सक्सेसफुल पेंटिंग एग्जीबिशंस उसके ज़माने में हुई हैं। किसी लड़की ने एमबीए किया हुआ है, कोई डॉक्टर है, कोई क्या, क्रेडिट वो दिया जाएगा कैसे वो घर को रन करती है। आई स्टार्टेड माई राइटिंग करियर ओवर देयर विद डॉन, so I've done a lot of teaching all over the country. Intellectually, Karachi is way ahead. I remember the fruit chap saying कि कराची ऐसी जैसे माँ होती है, गरीब आदमी की माँ है। How do you become a good writer, or you just throw everything, whatever comes to your head, you just throw it on paper and organize it later? जब शुरू में ना आप जब We are not just meeting an artist or a writer, we are meeting a woman who has turned every challenge into a canvas, every setback into a story, and every moment into a lesson. Miss Shireen Geba Najib. जो मैं राइटर बनी हूँ दैट वाज इन 1990। हम लोग कुवैत में रहे थे। वी केम इन 1987 एंड 1990 में इराक ओवरटेक्स कुवैत। आई वांटेड टू राइट इन सच अ वे दैट पीपल रियलाइज दैट हियर इज अ कंट्री वेयर पीपल आर लिविंग, दे आर ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। अब मैं बात कर रही हूँ तो पैलेस्टाइन सामने आ रहा है। जब आप अपनी शौक का काम करते हैं ना तो फिर वो काम नहीं लगता है, it just happens so naturally. आई ऑलवेज बिलीव दिस कि मैंने अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने फरियाद करनी है, उससे पूछना है, बंदे से नहीं पूछना। माई फादर मुस्लिम, माई मदर वॉज अ क्रिश्चियन। कभी उनके अंदर मैंने किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं देखा। Heal from pain. Is there ever anything called as fully healed? All right, ji. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to yet another episode of Ministry of Life. Today's guest, we are not just meeting an artist or a writer, we are meeting a woman who has turned every challenge into a canvas, every setback into a story, and every moment into a lesson. And from battling cancer with humor to raising daughters with strength, from painting emotions to writing truths, none other than Miss Shireen Geba Najib. Welcome to my podcast. Thank you so much for coming in. How are you? I'm glad and I'm very happy to be here. I had a sort of a feeling that I would love to be at your podcast. Nahi, that's so kind of you. And I've been following your work. The enthusiasm and the joy that you show, even on social. It is so refreshing to watch. So कुछ होते हैं comfort. अगर हम creators कहें या influencers कहें, कुछ होते हैं comfort influencers जिन्हें आपकी profile को आपके when you speak and whenever you're vlogging as well in your car driving, वो भी जो Yeah. lessons होते हैं वो it's so fun, and उसके अंदर भी कोई ना कोई lesson होता है which you tend to bring to the audience. So it is lovely, it is amazing. Welcome to Lahore. Do you visit here often? You'll be surprised to hear I used to be a Lahori. I have beautiful childhood memories of Wow. Lahore, Cavalry Ground, and Acha. the area near it where there used to be a lot of fields. And my childhood friend and I would be running around in the fields pretending my dog was a lion or something. We were just going hunting or climbing up those trees. And I have beautiful memories learning how to do ride the bicycle. Were you born here? No, I wasn't. You weren't. Acha. Yeah. But you fell in love with this place? Yeah, bas theek Oh, tha. yeah, definitely. Acha, where are you originally from? I'm from Islamabad area, a place called Pindi Ghaib nearby. Bilkul theek. But we are from there on paper sort of thing, not even Sahi. on paper. I was born in Rawalpindi and Bilkul spent sahi. my life all over the country. What is the difference? आपको क्या लगता है ये जो पिंडी इस्लामाबाद versus लाहौर वाली जो debate है, मतलब what is, like, where do you prefer? I know you might, अब आप रहती हो वहाँ पे तो. I love Islamabad. Actually, मैं बताऊँ, every city, I've lived everywhere. And each city has its own flavor, its own beauty. It's not fair. It's like comparing your children with each other. Huh? Each child has Yeah. his or her own beauty, Strengths and her own weaknesses strengths and- and weaknesses, and you enjoy it as it is. Yeah. And I've lived a lot of time in Karachi also. Really? Yeah. So Acha. I started my writing career over there with Dawn.
Amazing. Yeah, so I've done a lot of teaching all over the country. And एक चीज़ मेरा ज़रूर है कि I feel कि intellectually Karachi is way ahead. Really? I think Definitely. financially as well. Definitely. तो it comes with the Business package, hub. you see. हाँ. वो ये है कि हमारे यहाँ food, clothing, shelter. Lahore is more food, more clothing, and more shelter. ठीक है. But Karachi is a step beyond. वो इन तीनों circles में से निकल के वो आगे जा चुका है. जी. And it always was like that. I mean, Fast-paced. I have a habit of chatting with the fruit ले रही हूँ तो fruit वाले से गपशप शुरू हो गई. भाई तुम सब चाय पी रहे हो तो मुझे भी दो. तो वो फिर मुझे भी ला के देगा. फिर we start. I remember the fruit chap saying कि कराची ऐसी है जैसे माँ होती है. गरीब आदमी की माँ है. Wow. What a beautiful way of putting it. What a beautiful analogy. हाँ. He said it's like क्योंकि उसका weather बहुत comfortable है. Almost 1-2 महीने बुरे हैं. बाकी सारा साल बड़ी comfortable है. गरीब आदमी के लिए हाँ. बहुत आराम है उधर. ठीक है ना. माना कि वहाँ पानी कम है और ये है और वो है. वो इसलिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मैनेजमेंट ख़राब हो गई. लेकिन सहूलतें बहुत लोगों को वहाँ मिलती हैं. दे हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न. यू सी एट द क्रक्स ऑफ द मैटर कम्स अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न. बिल्कुल. जहाँ भी आपकी रोटी पानी लिखी होगी, रोटी पानी आएगी काम से. बिल्कुल. काम आपको जहाँ मिलेगा अब वहाँ रहेंगे, काम बिल्कुल. करेंगे. Okay. So each city has a lot to offer. I was in Lahore jab it was the city of cinema houses, the Yes. city of colleges, the city of cinema. Once upon a time, yes. Yeah, I mean, Yeah. मेरा बचपन जब था तो वहीद मुराद और मोहम्मद अली और That was such a हाँ? cool. I've heard. है ना? I've only seen it नूरजहान. in मतलब YouTube वगैरह और बाकी yeah, उस वक्त VHS जो cassettes वगैरह आती थी उस पे देखते थे. yeah, and But, people went to the cinema house, and ये Alhambra Arts Council was a old white building, and अच्छा. on Mondays TV नहीं होता था. ठीक है, TV का ऑफ होता था मंडे को. सो मुझे याद है कि मंडे को डैडी का फ़ोन आता था ऑफिस से कि अच्छा फिर मैं बुकिंग कर लूँ. फिर हम स्टेज प्ले देखने जाते थे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में. Wow. एंड एक्टर्स लाइक कवी खान एंड अली एजाज एंड मसूद. There was a person called Masood. They were all great actors we saw performing on the stage over there. Proper stage dramas और हाँ, उस वक्त तो proper. बड़े अच्छे होते होंगे. Oof, I'm talking about late 60s. You know? Wow. Wow. It was an amazing time. I mean, we can't even imagine. और टीवी तो ऐसा था जैसे कि एक बुखार नहीं होता सबको कि जिस वक्त ऑन होता है उस वक्त से लेके कौमी तराने तक everybody would be glued to it. Yeah, everyone. वो एक खास टाइम होता था. I've heard जी, कि बस जी. वो everyone would go. हाँ. वो एक शहद की मक्खी की तरह वो एक बैठ जगह पे जाते थे. पहुंच के और फिर yes and then उसके बाद वो डिस्टॉर्शन आ जाती थी. क्योंकि आई रिमेंबर माई अर्ली 90s कि उसके अंदर भी हमारा वो जो STN और वो PTV होते थे Yes. कार्टून का थोड़ा सा वो टाइम आता था. फिर वो दोबारा से वाली स्क्रीन आ जाती थी कि अब क्या Yeah. करें, कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकलो. तो हाउ डू यू सी दिस चेंज ये जो 60s से और अब अगर आप इसको देखें कि व्हाट्स मोर स्वीटर, व्हाट्स हाउ डू यू रेजोनेट इन Again, I have this thing as you have seen with the cities. I enjoy each thing as it is. तो आप वो टाइम था, उसकी बहुत अच्छी चीज़ें थी. ये टाइम है, इसकी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. I don't वहाँ say की अच्छी कि- चीज़ें. अच्छा थोड़ा सा अगर हाँ. let's relate और या कुछ चीज़ें ठीक है. 2-3 things which were amazing of that era. Oh yes, one was going to the movie houses. ठीक है. Honestly, अगर मैं किसी से पूछती थी ना कि अच्छा लाहौर में आप कहाँ रहते हैं, तो वो कुछ बोलता था तो मुझे उसकी समझ नहीं आती थी. मैं कहती अच्छा नियरेस्ट पिक्चर हाउस बता दें. अच्छा. अलफला देखने, अलफला पे जाना और ईगा पिक्चर हाउस Yes. और मैक्लोड रोड पे बहुत सारे सिनेमा हाउसेस अभी होते भी थे. हैं. हाँ हाँ. बिल्कुल. अच्छा मोस्ट ऑफ द मूवीज तो हमें इजाज़त ही नहीं होती थी ना जाने की. स्ट्रिक्ट अच्छा. भी बहुत थे पेरेंट्स. बिल्कुल ठीक है. तो फिर मेरे हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, वो हमेशा ले जाते थे. तो बड़ा ही मज़ा आता था कि उनके वो- साथ इजाज़त मिल हाँ जाए. ज़ेबा मोहम्मद अली की मूवीज़ पे वो लेके जा रहे हैं. आग फिल्म देखी और
फिर मेरी एक रिश्ते में अल्लाह उन्हें बख्शे, शी इज़ नो मोर देयर, बट मूवी से ज़्यादा अच्छी वो कहानी सुनाती थी। वाओ! तो चूंकि मुझे इजाज़त नहीं थी और वो देख के आ चुकी होती थी, तो फिर वो बैठ के मुझे पूरी फिल्म सुनाती थी और मैं बड़े गौर से सुनती थी। अच्छा, मैंने ईयर्स लेटर जब मैंने वो मूवी देखी तो मैं कहा, ये थी वो फिल्म। ठीक है, अच्छी थी पर इतनी भी अच्छी नहीं थी हाँ, जितनी उन्होंने सुनाई वो थी। तो नरेट की। बहुत ज़बरदस्त, यू नो। सो इट वाज, एंड देन देयर वाज अ लॉट ऑफ रीडिंग। बहुत रीडिंग होती थी, एवरीबडी यूज्ड टू रीड अ लॉट। ले कहानी सुनाना, फिर जो पढ़ता था ना फिर वो बाकी सबको अपने इर्द गिर्द बिठा के उसको कहानी सुनाना। तालीम और तरबियत होती थी, मैगज़ीन फिरोसन्स का। बच्चों की दुनिया होता था, जब अब बच्चे होते थे तो अब पोस्टमैन आ रहा है तो वो आ रहा है, जिस वन वाज बी लुकिंग ईगरली। कि नेक्स्ट एडिशन, हाँ, नेक्स्ट वॉल्यूम। अच्छा, बच्चों की दुनिया हमने देखा कि कहानियाँ असल में सारी एक ही है। हुँ। वो एक पर्सन होता है, वो उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो एक पहाड़ की चोटी पे जाके पता नहीं वो कोई चीज़ छुपी हुई वो रख दी उसने। अब इसने जाके वो ढूंढना है, रास्ते में जी कोई ड्रैगन आ गया, कोई सांप आ गया, कोई ये आ गया। सो दीज वर द काइंड्स ऑफ फेरी टेल्स जो उस बच्चों की दुनिया में होता था। यही फॉर्मूला होता था, कैरेक्टर्स और वो चीज़ें हुँ, बदलती रहती थी। ठीक है। और एक होता था, जैसे आई रिमेम्बर क्लियरली कि एक आदमी को कोई बच्चा होता है, उसके साथ वो एक गंदी सी विच होती है, वो उसको कहती है कि अच्छा तुम्हें मैं पता नहीं छोड़ तब तब छोड़ूंगा तो अगर तुम जाके दरिया से एक उसको छाननी देता है और उस छाननी में से दरिया में से तुम पानी लेके आओ। अब वो सही। बेचारा जा रहा है छाननी में पानी भरने की कोशिश कर रहा है तो वो तो नहीं भर रहा, तो हर दफ़ा पानी नहीं वो निकल जाता है बाय द टाइम द कम। इस तरह की स्टोरी होती थी। अच्छा, फ्लैश फॉरवर्ड, और मैंने कहा ये असली ज़िंदगी यही है। आप कोई काम करने लगते हैं, बीच में कोई मसले आ जाते हैं ऑब्स्टिकल आता है, यू हैव टू ट्रबल शूट। और हमारे गवर्नमेंट के जो प्रोसेसेस होते हैं, हाँ। ओ जी इसका यूनियन काउंसिल का सिग्नेचर चाहिए, हुँ। सिग्नेचर। अच्छा, आप उधर जाते हो, वो 6 और पॉइंट्स दे देता है, आप ये पेपर्स लेके आओ। अच्छा, वो आप लेके आते हो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हो, नहीं जी नादरा ऑफिस में आपने ये करना। वो बच्चों की दुनिया की जो कहानियाँ थी ना, वो असल रूप उन्होंने हंसदा सांप और अच्छा, वो डिपिक्शंस थी। वाज़ इट आई एम जस्ट अच्छा, यू आर जस्ट आई एम जस्ट ठीक है, हो फाइंडिंग अ सकती है, हो एनालॉजी, सकती है। क्या पता राइटर ने ऐसे लिखा हो, है मेबी ना? मेबी हाँ। स्ट्रिक्टनेस इतनी होती हो कि यू कुडन्ट आउटराइटली। वाज़ इट um, फ्रीडम ऑफ स्पीच उस तरह फ्रीडम ऑफ बेहतर थी स्पीच तो बहुत देखी है मैंने, आज से ज़्यादा? बहुत। आई हैव आजकल मेट से? फॉरेनर्स हु वाज शॉक्ड एट द काइंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वी हैव हैड इन पाकिस्तान। वाओ! खुले बोलते हैं हम लोग तो, और नहीं भी बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, अभी या उस ज़माने में? उस ज़माने में डेफिनेटली। हुँ। और ज़िया का इरा अक्सर हर फोरम पे लोग बात करते हैं, जबकि मेरी मोस्ट सक्सेसफुल पेंटिंग एग्जीबिशंस उसके ज़माने में हुई हैं, आर्ट काउंसिल्स में हुई हैं। एंड द काइंड ऑफ आर्ट काउंसिल privileges I enjoyed over there for free अब नहीं है। आई हाँ। रिमेंबर मैंने नेशनल आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन की थी 1980 में, बल्कि 81 में, माई फर्स्ट सोलो शो। एंड ओवर देयर आई जस्ट वेंट टू ड्रॉप माई पेंटिंग्स। उसके बाद उन्होंने सारी पेंटिंग्स खुद अरेंज की, कार्ड्स उन्होंने छापे, नो एक्सपेंस टू मी, चाय एंटरटेनमेंट सब उन्होंने अरेंज की, चीफ गेस्ट उन्होंने अरेंज किया। वाओ! Khalid Said Butt was the director. In the function, he was the one making the welcome speech. Chief guest was Air Marshal Inamul Haq. He was the housing minister. और उनसे तब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक फॉर्मल बिल्डिंग चाहिए नेशनल आर्ट गैलरी के लिए, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के लिए। चाय पानी सब कुछ was on the house। वाओ! और जो सेल होती है उसमें से वो कह रहे थे कि आई डोंट नो 20-30% और समथिंग, बट अब जो मुझे याद है वो भी नहीं लिया होगा उन्होंने। मतलब इट वाज सो promote, they were really More promoting pro art. art. Yes, definitely, वाओ! you know. वाओ! I'm talking 1981। फिर 1982 में मैंने शाकिर अली म्यूज़ियम इधर जी। पेंटिंग सोलो एग्जीबिशन की। they arranged everything।
everything. All the artist had to do was just provide the The paintings. work. They put it up and everything. Jimmy Engineer, he's a friend of mine. So he came, नहीं शिरीन मैं तुम आके देखता हूँ सही कर रहे हैं कि नहीं. मैंने कहा नहीं थे भट्टी साहब होते थे यहाँ. So he was very nice, very accommodating. तो वो कह रहे कि जी कैसे वो then he came and he saw नहीं नहीं तो बड़ा अच्छा किया हुआ है आपके लिए ये वो कहते नहीं यंग आर्टिस्ट को देख के लोग कई दफ़ा इतना अच्छा अटेंशन नहीं देते बट everybody did everything so nicely, so smoothly. Amazing. And So have you seen sweetly. it change now? Yes, definitely. अब ये हाल है कि जब मैंने अपनी बुक पब्लिश की, अल्लामा इकबाल की, आई इलस्ट्रेटेड इट, आई पब्लिश्ड इट, खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसको प्रिंट करवाया. और जब मैं गई टू PNCA कि भाई आप मेरी बुक लॉन्च कर दें, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप बस 2 लाख रुपए दे दें और बाकी सारी अरेंजमेंट्स आप खुद करेंगी. अच्छा, पैसे भी देंगे, पैसे भी दें, अरेंजमेंट भी आप खुद करेंगे. कार्ड्स भी आप खुद छापेंगी, चाय पानी भी आप खुद उसके पेमेंट करेंगी, सब कुछ आप खुद करेंगी, ठीक है. बट यू कैन यूज आवर प्रेमिसेस फॉर दैट इन दैट वे. बस नाम लेने के जी. लिए. And Wow. then Okay. there's this building called Nazriyat Pakistan in F9 Park, something like that. Nazriyat Pakistan या Nazriyat. मैं उनके पास गई, मैंने कहा वो कितने खुश होंगे कि मैंने अल्लामा इकबाल के ऊपर काम किया. तो उन्होंने भी सेम थिंग, हमारा हॉल है, आप 2 लाख दें और हर चीज़ की पेमेंट आप खुद करें. एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, आई वाज वेरी अपसेट. मुझे इतना हुआ, मैंने कहा देखो they should have been happy. I mean एक बिल्डिंग है जिसका नाम ही नजरियात पाकिस्तान है. They should have Yeah. welcomed it. So anyhow then मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया, आनिया को. तो पता नहीं क्या बात, मैंने कहा I'm just giving up the whole idea. You know, there's no point in going ahead. मैं पहले ही इतना खर्च कर चुकी हूँ beyond my own limits. तो so she said कि हो ही नहीं सकता. I will arrange it. And she got a private art gallery, Ux Art Gallery. और आजकल वो भी बेचारे किसी प्रॉब्लम में हैं. तो दैट गैलरी अग्रीड टू होल्ड माई एग्जिबिशन. एंड फिर उसका मैंने व्हाट आई हैड द ड्रीम ऑफ कि एक एग्जिबिशन होगी जिसमें ईच इलस्ट्रेशन इज़ अ पेंटिंग. So there was this painting exhibition, which was my 11th solo exhibition. And then at this, another, जो एक और hall उनके सामने, in that we had the book launch. अच्छा, amazing. So it was the book launch and the Parallel. painting exhibition, both connected with each other. And I invited Hajra Mansoor and Mansoor Rahi as chief guests. One of them was for the book launch. The other one, Sir Rahi, did the opening ceremony of the painting exhibition. And so we had a proper function for that. Of course, I paid for it and all, but it was far more nominal and more warm and more close. It's close so knit. अब this ये तो सिर्फ अब आपका एक्सपीरियंस है, एंड you're a veteran at it. अब कितने ऐसे नए लोग होंगे जी. जो अपना आर्ट आके लेके नहीं आ सकते बिकॉज प्लेटफॉर्म्स नहीं है. अगर Exactly. हैं तो पैसे बहुत ज़्यादा हैं. हाँ. तो it's really disheartening या discouraging for young or for the youth to actually bring up this, because अभी जब आप बात कर रही थी, so let's go back to that point because that is where I want to link something up. Was जिस तरह आप कह रही हैं कि cinema houses and stories, and was that the point that you fell in love with the storytelling and art and writing, या was there some other moment when you realized कि यार ये करना है? राइटिंग में उस वक्त बचपन में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी. Though I was good in English, I was good in writing and all that. But painting was my first love. I mean, I've been drawing, since. और तब बड़े अच्छे बुक्स होती थी, बड़ी अच्छी सेल्फ हेल्प पेंटिंग की बुक्स होती थी. हर जगह शॉप्स में भरी हुई होती थी. You can just go and, pick one up and how to step by step वो सिखा रहा होता ये किस था. एज की आप बात कर रही हैं? ये I'm talking about 9, 10, 11, 12 वाओ, in my ओके. teens. तब से शौक था आपको? बिल्कुल. I think I did my first oil painting at the age of 12, which was not at all worth looking at. And उसके बाद मैंने की थी which was a bit worth looking at, लेकिन बीच में मैं इतनी frustrate हो गई क्योंकि मुझे
वो बात है, टीचर कोई नहीं थे तो खुद से सीखना था, खुद ही किया। तो फिर मैं उसको उठा के फेंक देती थी, तो फिर मम्मी उठा के लाती थी कि नो नो नो, देखो तुमने ये साइड कितना अच्छा किया है, चलो चलो अभी ट्राई दिस ट्राई दैट, यू नो। That's such a blessing to have a हाँ, parent to यस, encourage your art. हाँ। माई मदर वॉज वेरी इनकरेजिंग, और उनको बड़ा अफसोस होता था, कहती शी स्टडीड इन अ वेरी वेरी गुड स्कूल इन इंडिया विच वॉज डाउ हिल स्कूल विच इज़ इन दार्जिलिंग, Kurseong near Darjeeling. Alright. And even now it's a very established and a very good school. Yeah. उस ज़माने में it was one of the best schools of subcontinent. हमें कहती है हमारी आर्ट टीचर इतनी ज़बरदस्त थी, and she said I was so bad in art ना, so she said I wish you had that teacher, so it would have been so good for you, you know. Do you तो अच्छा फिर राइटिंग की तरफ आए, तो राइटिंग का शौक कब पड़ा आपको? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, व्हेन आई डिड माय मास्टर्स, तो मेरा थीसिस था इन फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स कॉलेज। वो भी ज़बरदस्ती मुझे होम इकोनॉमिक्स में डाला गया था। आई वांटेड टू गो टू एनसीए, अच्छा, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई वाज वेरी यंग फॉर माय एज व्हेन आई डिड माय मैट्रिक, एट 14 आई डिड इट। ठीक है। सो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यू आर टू यंग, और वो फिर नहीं, वो तो फिर वहाँ उस ज़माने में ड्रग्स बहुत होते थे, खैर अब भी हैं, लेकिन Really? हाँ हाँ सब कुछ होता था। तो वो फिर दे वर सेइंग यू आर टू यंग, यू नो, तो तुम बीएससी होम इकोनॉमिक्स कर लो, उसके बाद वी विल डेफिनेटली पुट यू इन एनसीए, बिकॉज यू विल बी ओल्ड इनफ एंड मैच्योर इनफ एंड देन यू कैन गो दैट। जब मैं हो गई तो उसके बाद एक बड़ा सा स्कैंडल आ गया एनसीए में, तो वो जी बस उस वक्त तो नाम ही लेना एनसीए का, इट वाज इन ऑल द गुनाह हो गया एक। न्यूज़पेपर्स, Oh my God. ऑल दैट। तो फिर एज अ सेकंड थिंग मैंने फिर मास्टर्स कर लिया इन रिलेटेड आर्ट्स इन कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स। अच्छा, हाँ, ठीक है। रिलेटेड आर्ट्स वाज यू नो आर्ट अप्रिसिएशन पढ़ा, फाइन आर्ट्स उसमें था, पोट्री थी, सो I think child home economics art. is quite hands-on. वेरी नाइस, यस, Yeah? अच्छा है, Yeah. अच्छा है। लेकिन yeah. आई वाज बिग टॉम बॉय, यू नो, तो मैं उस टाइप की थी नहीं, वो सारे कॉलेज में मेरे मजाक होते थे, तो आई अच्छा। डिड वेल एकेडमिकली। तो खैर थीसिस मेरा था ऑन लाइटिंग, बिकॉज आई लव्ड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, Wow. तो उसमें लाइटिंग के ऊपर था, इल्यूमिनेशन, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इल्यूमिनेशन इन पाकिस्तान, इसके ऊपर था। ठीक है। So wo Salima Hashmi was my examiner, and I got the highest marks for it. Oh, she was so, you know, she put in such good words with my principal. So my principal said कि इसको तुम ज़रा, ये तो बहुत academic है, तो इसको ऐसे करो for the, you know, for the layman या this thing, कि तुम Practical. I'll get it published for you. Wow. So I said okay. अब जब मैं उसको देख रही हूँ पब्लिश के लिए, तो फिर मैंने कहा लाइटिंग पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, बेसिकली तो आर्किटेक्ट्स होंगे या फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इंटीरियर्स एंड यू नो दैट्स इट, हाउसवाइफ्स और मे बी फ्यू पीपल जो अपने घर की लाइटिंग को इंटरेस्टेड है। हालांकि अब आप देखो कि आपकी जो भी मेमोरीज हैं ऑफ पीपल प्लेसेस डिपेंड्स ऑन हाउ इट वाज लिट, यू डोंट रियलाइज इट, लेकिन Wow. अभी आप जब मुझे नज़र आ रहे हैं, आप मुझे वैसे ही याद रहेंगे ना। वो चीज़ तो आप छपेगी मेमोरी पे। हाँ, तो आपकी लाइटिंग अच्छी होगी तो उसमें आप अच्छे लगेंगे, लाइटिंग ख़राब सी होगी तो उसमें बंदा बिल्कुल ड्रैकुला भी लग सकता है, यू सी। Wow. So it's the We never thought lighting. about it. Yes, lighting has the greatest impact, and it's very behind the scenes sort of thing, you know, but it makes all the difference. It's so true. It's like Yeah, when I've yeah. set up all this place, Yes. and then now I realize कि हाँ lighting and all that. Yeah. But कभी उस तरह नहीं सोचा कि अच्छा यार वो मेमोरी के अंदर भी उसी तरह छपता है इंसान। Naturally, जैसे आपको नजर आता है, Yeah. and you remember 70% of what you see, Yeah. 30% of what you hear. Yes. Yes. इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा व्हाट यू विजुअली सी। और ये जो आपने किया ना, जैसे वाइट लाइट एंड द वार्म लाइट, Hmm. दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, Thank you. Thank you. Thank you. बिकॉज सबकॉन्शियसली इंसान यू वुड डू द राइट थिंग। Hmm. लेकिन अक्सर कई घरों में जैसे सिर्फ वाइट लाइट होती है, Hmm. तो फिर वो इतनी गंदी ब्लूइश टिंट आता है Yeah. स्किन पे, Yeah. यू नो। सो इस तरह की ये छोटी छोटी सटल चीज़ें। True. एनी हाउ, सो दैट बुक मैं लिखने बैठी, तो फिर मैंने कहा कि वाई नॉट होम इकोनॉमिक्स पे ही लिख डालूँ, यू नो। आई नो Institute पे? हाँ, नहीं, अच्छा। नॉट इंस्टीट्यूट, But your life but there. Yeah. what we have learnt, Okay. like food and nutrition, interior designing, is so I wrote a book
फॉर अ होम मेकर लाइक दैट, लाइक देखो हर एक तो होम इकोनॉमिक्स नहीं जाता ना, जी बट व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज कि कितनी यूजफुल चीज़ है। जी अच्छा, एक ने किसी लड़की ने एमबीए किया हुआ है, किसी कोई डॉक्टर है, कोई क्या, आना तो उसने घर ही है हम्म, और पकाना भी उसने किचन में ही है, हम्म, और उसको जितनी मर्जी ब्रिलियंट डॉक्टर होगी वो हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में, लेकिन उसको क्रेडिट वो दिया जाएगा कैसे वो घर को रन करती है, बच्चे उसके कैसे, रिकग्निशन वहाँ असल हाँ रिकग्निशन। अच्छा, पावर भी बहुत है, वुमन कैन रूल एवरी फैमिली मेंबर थ्रू द होम, so true. शी इज द क्वीन ऑफ द होम, यू नो। She is. But Yeah, do you think nowadays women have let go of this understanding? so that's where my book came in. Acha, amazing. So that's the kind of book I had planned. Okay. So that, अच्छा, हम लोग होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में we had books which were written by Americans. हमारा फोर्ड फाउंडेशन ने हमारा कॉलेज इस्टेब्लिश किया था. सो फोर्ड फाउंडेशन की बुक्स होती थी हमारी लाइब्रेरी में. अच्छा, उनकी हम चीज़ें जो भी हम पढ़ते हैं, ये वो जब फूड एंड न्यूट्रिशन है, जो कुछ है, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी चीज़ें हैं, हमारा अपना एक एक वाइब है, जो भी है. सो आई वांटेड समथिंग जो हमारे कल्चर को, हमारी यू नो प्रेफरेंसेस को वैल्यू करे. सिंपल सी चीज़ है, लाइक अ क्वार्टर प्लेट, व्हेन अ टेबल इज सेट, अ क्वार्टर टेबल प्लेट इज सेट ऑन द लेफ्ट साइड. जबकि हम कहते हैं हमने राइट हैंड से रोटी खाते हैं, वी पुट द क्वार्टर प्लेट ऑन द राइट साइड. नहीं, the gora puts his plate on the left side, so you're going to put it in the. अब हमने रोटी खानी है, हम रोटी राइट हैंड से खाएंगे. Yes. Why can't we put it over? Exactly. So you see things like that. So So this is what you like. You Yeah, I wrote did all it. like. I- Was your book like an instruction manual of how to? not an instruction is something. Why not do it like this? So if we do it like this, Wow. something, yeah. So it was. Acha, so I went to Zahir Salam, Firoz San's के a very interesting person. तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको बता दूं कि ख़वातीन जो है ना वो किताबें नहीं पढ़ती, अच्छा और इतनी मोटी किताब तो वो देख के ही वो भाग जाएंगी. अच्छा. तो एक एक चैप्टर को एक एक बुक बनाते हैं. इतना ज़्यादा लिख दिया था आपने? जी. तो अच्छा. अब उन्होंने कहा कि एक चैप्टर को एक बुक बनाएंगे. अच्छा, अब एक चैप्टर को जब बुक बनाना है तो उसको फिर दोबारा है टू वर्क ऑन इट, हाँ, वो उसको एक टू बुक मेक की इट इन अ. starting, हाँ. ending and all that. तो उसमें फिर एंटरटेनिंग गेस्ट का अलग एक बुकलेट बनी, एक किचन मैनेजमेंट की बनी, और एक रेसिपीज़ के ऊपर फन कुक बुक बनी. Wow. सो आई रेड ऑल दैट. अच्छा ये सब, खैर जब उन्होंने मुझे वो पहली दफ़ा कहा था ना, तो मैंने कहा ये आपको डस्टबिन नज़र आ रहा है, इसमें फेंक दें, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट. अच्छा. आई वाज सो अपसेट, यू नो, इट वाज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. True. अब ये कह रहे हैं फिर से शुरू हो जाओ ज़ीरो से. खैर, But this is like after you have graduated या अभी oh आप? yes, yes, Yeah. definitely after done my masters. Okay. I had moved to Rawalpindi. अच्छा. My parents were over there. मैं तो हॉस्टल में यहाँ थी, या मैं अपने यहाँ मेरे दादी जी थी, डैडीज चची, उनके घर में रहती थी गुलबर्ग में, Alright. अपने कजन्स और चचा के साथ. So I was used to live in Gulberg in those days. And so that's how I did my home economics. And that is where अच्छा अब ये तो आपने disheartening वाली और वो फेंकने वाली बात की, तो फिर मोहब्बत कहाँ से आई राइटिंग की? मोहब्बत तो बाद में आई ना. वो डॉक्टर ज़हीर सलाम ने कहा ये आपने एक दफ़ा जुमला बोला है मेरे सामने, आइंदा मैं कभी ना ऐसी बात सुनूं. अच्छा. यू आर गोइंग टू डू इट एंड यू कैन डू इट एंड ऑल दैट. Wow. वो इतनी हिट हुई कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, वो दोनों बुक्स जो हैं, फर्स्ट टू जो हैं. तो जबरदस्त. बट मोस्टली तो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए हुई कि ज़्यादातर तो मैंने ही खरीदी हैं लोगों को गिफ्ट करने के लिए. अच्छा. एंड डू यू नो हाउ मच दे पे द ऑथर फॉर इट? No. 10%. What? When daddy heard that, he said, बेटी चलो मेरे साथ. It's a heartbreaking journey. It's a real heartbreaking journey. 10% में क्या होता है? मतलब you made all the effort, it's your हाँ. content, your brainchild, जी, और your किताब जो है वो sweat and 99 time. 99 रुपीस की है. उन्होंने खुद ही प्राइसिंग की ये वो. I mean, I'm talking long ago, like I'm talking 2006, right? बिल्कुल ठीक है. 2004, 2006. And then the Fun Cookbook got published in 2009. Alright. So that अब ये है, the Fun Cookbook is available in Said Book Bank, अच्छा, Firoz still Sons there. की Alright. shops में हैं. Amazing.
सो दैट्स पर मैं अब इसको मैं वही कहती हूँ, आज मैंने एक चीज़ अपनी स्टोरीज में शेयर की थी कि एक फोटोग्राफर जब एक पिक्चर लेने लगता है, वो कॉम्पोजिशन सही नहीं आ रही होती, तो वो फिर अपना एंगल चेंज कर देता है. तो दैट्स व्हाट आई डिड इन माय लाइफ, कि मैंने कहा चलो देखो ये मेरा सदका जारिया है. ये तो हमारा ईमान है ना कि बिल्कुल. जो हमारा राजिक ने हमें देना है ना वो देगा. देख के रहना. अब जी. हम उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि अब तू मुझे इधर से दे, तू मुझे इधर से दे. ही इज गोइंग टू डिसाइड वेयर ही इज गोइंग टू गिव इट टू यू. हम्म. लेकिन आपने हाथ पैर हिलाने हैं, आपने काम करने हैं. वो पता नहीं कहाँ से देगा आपको, लेकिन देगा. एंड आपने ये भी डिटर्मिन नहीं करना कि आपने ये देना तो इतना देना, तो इतना नहीं देना. तो यू आर नॉट द डिक्टेटर, ही इज द डिक्टेटर, ही इज द गिवर. Hmm. So if you have faith in that and you just keep working and just leave his things to him and do your part. Yeah, yeah. कहीं ना कहीं पहुंच जाता. जी. So अच्छा, अभी तक मैं राइटर नहीं बनी. जी. जो मैं राइटर बनी हूँ दैट वाज इन 1990. हम लोग कुवैत में रहे थे. माय हस्बैंड वाज पोस्टेड टू कुवैत फॉर 3 years. Okay. अच्छा, हम जब वहाँ से वापस आए, वी केम इन 1987 एंड 1990 में इराक ओवरटेक्स कुवैत. Oh. वो बड़ा एंड आई वाज शॉक्ड टू सी पीपल प्रो सद्दाम की वो बड़ी परेड्स वगैरह हो रही थी, ऑल द मार्चिंग पीपल बड़े इमोशनल हुए. हाउ कैन समबडी रन ओवर अनदर कंट्री? Yeah. हाउ कैन उसकी Sovereignty. सॉवरेनिटी होती है. Yeah. Yeah. एक सॉवरेनिटी आप उसको डिसरिगार्ड कर दो एंड यू जस्ट मूव आउट. टैंक्स लेके आ गए हो भाई. Hmm. How is this possible? Yeah, it's not right. It's not good. I was very emotional about it. Hmm. And very few people had lived in Kuwait. I wanted to write in such a way that people realize that here is a country where people are living. They are human beings like us. They have families. They have hopes. And अब मैं बात कर रही हूँ तो पैलेस्टाइन सामने आ रहा है. लेकिन उस वक्त की ये बात थी. And I just felt कि I have to write about it. So I just sat down and मैंने कोई एक पूरी रात लगा के, मैं ऐसे ही काम करती थी, तो पूरी रात लगा के एक आर्टिकल मैंने लिख डाला about life in Kuwait. और लिखा भी प्रेजेंट टेंस में. ज़रा इम्पैक्ट होता है ना, आई एम गोइंग हियर, I've seen this. The reader is just walking around in Kuwait with Yeah. that. Yeah. एंड उस वक्त तक मेरा कोई काम पब्लिश नहीं हुआ था. तो 1990 में एक रात में वो किया, तो दूसरे दिन नजीब वाज लाइक व्हाट आर यू डूइंग. तो मैंने कहा आई वांटेड टू राइट अबाउट इट. ही सेड फाइन. तो देखने लगे तो ही इज मैंने बताया ना, ही इज अ कंप्यूटर गुरु. उन्होंने देखा ये तुम कंप्यूटर लिटरेट पर. आई यूज्ड टू यूज द कंप्यूटर अ लॉट. तो वो कहे कि ये तुमने कंपोजिंग किया है, ये तुमने किस तरह की ये स्पेसिंग किया है, ये किया है, वो किया है. He spent 3 days on it. फिक्स करना. फिक्स करने. अच्छा, फिर वो वर्ड्स पे आ जाते थे कि ये तुमने वर्ड कैसे किया, ये तुम्हें ये नहीं लिखना था. वर्ड्स पे ना कॉम्पोजिशन जो मर्जी कर ले. अच्छा, उनको भी शौक था. उनको या ही वाज वेरी ब्रिलियंट. अपनी जगह राइटिंग वगैरह हर चीज़ में ही वाज वेरी गुड. अपने एफर्ट्स के ना, ही वाज वर्किंग इन द प्रेस ओवर देयर. Okay. उनको तो वैसे ही किताबों से Oh yes. हर वक्त वास्ता पड़ता Yeah. था. Okay. All right. एक्चुअली ये जो एयरक्राफ्ट की बुक्स होती है ना, उसके सिलसिले में ही वाज वर्किंग ओवर देयर. सो ये पीएफ के लोग सारे बड़े सख्त परफेक्शनिस्ट लोग हैं. दे आर ब्रिलियंट ऑल ऑफ देम. अभी जो नहीं, जितना अभी कुछ तो हमने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह, it हाँ, was we've amazing. पता been, हाँ, बनता है. ब्रिलियंट पीपल. हाँ. एंड मैं कहती हूँ आई लव्ड द लाइफ इन द एयर फोर्स. And Amazing. I loved the whole thing. My husband was a sportsman. He would play squash and all that, and I was part of everything over there. Wow. He used to just love it. Amazing life. पोस्टिंग्स होनी बेसिस पे, फिर जहाज़ों की आवाज़ें हर वक्त, और फिर नजीब को तो हर जहाज़ का सब कुछ पता होता था. Would he tell you all about it? number and all that. Yeah. Yeah, जो बता सकते थे, कोई बताने के. देखो, there's a lot of security issues over there and you have to keep it. बेगम से इतनी गप्पे मारने की जरूरत नहीं होती है हस्बैंड्स को. Not about official matters. हाँ, true. You see? Yeah. And sometimes मैं जो आर्मी ऑफिसर की बेटी,
I knew Mm. how important it is for an officer to keep the sensitive things to himself. Yeah. एंड आई रिस्पेक्टेड दैट. तो मेरे हस्बैंड कई दफ़ा बड़े इम्प्रेस होते थे कुछ वाइफ से कि ओ उसको तो सब कुछ पता है फ्लाइट लाइन पे क्या हो रहा है. मैं कहा कि सही Hmm. नहीं है. इवन इफ शी नोज शी शुडंट बी टॉकिंग अबाउट इट. Yeah, exactly. We Exactly. all have to be extremely Cautious. sensitive, and we have to support the husband in every way that we can. Wow. Yeah. Yeah. So and there are lots of ways that the wife does. But I would love to say some words for them. Please. Like it's a very tough job. और आपको पता है कि I'm digressing from the main topic, but he was once long much later AFIC में थोड़ी देर एडमिट हुए. कोई एंजाइना वगैरह का मसला था. तो उधर उनके दोस्त आए आर्मी के ऑफिसर. तो उन्होंने कहा आपको पता है AFIC में सबसे ज़्यादा एयरफोर्स ऑफिसर्स एडमिट होते. तो मैंने कहा आई एम नॉट सरप्राइज्ड. इतनी हाई टेंशन वाली जॉब करते हैं ये लोग. Hmm. Like my husband would go at about, when I got married, he used to go to the flight line at 4 a.m. He would be wearing his dungarees of his flight line, and he would be at the flight line in Miyawali at 4 a.m. And he would come home, if I was very lucky, at 3 p.m. and his dungarees would be sopping wet in sweat. क्योंकि फ़्लाइट लाइन से वो आ रहे हैं, और फ्लाइट लाइन मीन्स जहाँ जहाज़ खड़े होते हैं. और उसके बाद ही इज़ ऑन कॉल कभी भी ना. ऑल आवर्स. ही इज़ गोइंग एट 9 p.m. हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी हुई तो पूरा हमारे फंक्शन किया हुआ था. तो वो एन वक्त पे ही हैड टू गो बिकॉज वो फ्लाइट लाइन पे कुछ मसला था. ही हैड टू गो, ही टू बी देयर. सो इट्स एंड सो द वाइफ हैज़ टू बी कोऑपरेटिव. ही हैज़ टू बी अंडरस्टैंडिंग and take care, अब मुझे आदत हो गई थी कि मैं अब बेटी का फ्रैक्चर हुआ है. आई यूज टू टेक द डॉटर टू द डॉक्टर. उसका वो करवा लिया सब खुद कुछ. लेके जाना है. गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खुद जाके रिपेयर करा ली, खुद कर लिया. जब नजीब आए तो फिर ये भी इंस्ट्रक्शंस थी पेरेंट्स से कि ख़बरदार जब मियाँ घर में दाखिल होता है तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं बताने. क्योंकि मैंने देखा था अगर वो पूछते हैं ना कि कैसा दिन गुजरा, मैंने कुछ बता दिया, हाँ आज ये हुआ, ओ गॉड, उसी वक्त ही वुड स्टार्ट डूइंग इट अप. नो, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा दिन गुजरा था, एवरीथिंग वाज फाइन. That's so sweet. फिर वो खाना खा लें, सब कुछ रिलैक्स कर लें, आराम कर लें. उसके बाद छोटा छोटा बताया कि हाँ वो गाड़ी लग गई थी, वो मैंने ठीक करा के वापस ले आई हूँ. और बेटी का फ्रैक्चर हुआ था, वो भी मैंने उसका कर लिया. सब्जा सौदा लेना था, वो भी जाके लाए. And how would he react then? No reaction, that's how it was. Yeah. He had 101 things to do in the flight line. But he would So- also regard you doing all this, right? Mm, Yeah, it I was guess he got yeah, used it to was it. yeah, it was understood. It was And this is what you have to do. This is what life is. हाँ ऐसे ही होता. और you should do it. Make it easy for him, make it comfortable for him. Yeah. तो ये सारी बातें मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी सिखाया हुआ था कि नहीं मियाँ के लिए ख्याल रखना है, ये है वो है. लेकिन जब मैंने जॉब शुरू की तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया. जब मैं अच्छा. स्कूल में पढ़ा के वापस आती थी तो अगर मेरे पेरेंट्स मेरे घर में आए हुए हैं तो कहते तुम्हें तो घर की कोई होश ही नहीं है, देखो तो तुमने ये कि. मैंने कहा मम्मी आपने मुझे क्या बताया था कि मैं भी तो जॉब करके आई हूँ. वही सारे मेरे पे भी तो लागू हाँ, होते हैं. मुझे भी तो मैं- पैम्पर करने थोड़ा. एग्जैक्टली. हाँ. फिर दूसरे दिन जब मैं आई तो उन्होंने फिर शिकंजबीन का ग्लास मुझे दिलवाया और कहा कि नहीं बैठो ज़रा. Cute. All right. तो ये थोड़ी सी लाइफ की इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं. Nee, what an amazing divergence, and I think it's and this is why I did this, right? Ministry of Life. So this is, I Yeah. think, such an This is important life. aspect of हाँ. life कि ये हर एक की जिंदगी में होना है. एक हाँ. मर्द ने भी, जी. बच्चे ने मर्द बनना है, उसने काम करना है, उसने हाँ. प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करना है, हम्म. उसने इज्जत देनी है. और औरत ने भी एक लड़की से उसने एक औरत बनना है और उसकी भी एक जिम्मेदारियां हैं. सपोर्टिव दोनों को जी. साथ काम करना है हाँ. और एक दूसरे की इज्जत करनी है. बिल्कुल. और ये चीज़ आई डोंट नो कि अब क्यों नहीं पहले से सिखाई जाती. एंड बस एक जिम्मेदारी उतारने वाली बात होती है कि बस अच्छा हाँ जी ऐसी तो शादी करती. एक्चुअली माय पेरेंट्स नेवर इंटरफेयर्ड इन माय मैरिज एवर. लेकिन अब जैसे पता नहीं क्या बात हुई एक दफ़ा तो
शी वाज आस्किंग कि तुम क्या कर रही हो, तो मैंने कहा हालांकि आई नेवर डिड दैट, वो उस दिन पता नहीं किस तरह मैं नजीब का शूज़ कोई पॉलिश का कोई देख रही थी, हालांकि आई नेवर डन इट, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी, बट वो थी तो अम्मी कहती हाँ हाँ कोई ढंग का काम किया है। मे बी अनदर मदर वुड हैव सेड के मियाँ के जूते पॉलिश करी हो, ये कोई बात है, यू नो। एंड ही, माई हस्बैंड वाजंट दैट टाइप, ही वुड आयरन माई क्लोथ्स फॉर मी। हमारे घर में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था। आई वुड चेंज द टायर ऑफ द कार हैप्पीली एंड ही टॉट मी हाउ टू डू इट Amazing. when I was driving the car. When he taught me how to drive the car, he taught me how to change the tire. तो हमारे घर में it was no gender issues कि भाई he would take care कोई of. शर्म नहीं है ना कि हाँ हाँ ठीक है कर दिया, हाँ वो भी तो ये करती है तो मैं भी ये कर बिल्कुल। देता हूँ। हाँ और पत्नी क्या था, सुबह एक दिन कहते हैं मैं किचन में सिंक में बर्तन धो रहा था, तो ऊपर से मेड आ गई, कहते इधर मेरे हाथ में बर्तन उधर से मेड। हाय मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने मुझे देखा, कहते फिर मैंने सोचा ये मेरे बर्तन है, मेरा घर है, मेरा किचन है, क्या हो गया अगर मैंने बर्तन धो रहा हूँ। यू नो ऑफिसर। अमेजिंग। हाँ तो एंड आपको पता है एक हदीस भी है कि हज़रत आयशा, आई बिलीव, कमोपेशी माफ, कि जिसका मफहूम है कि एंड शी इज नरेटिंग कि द प्रॉफिट वुड बी एट होम लाइक एनी other person that you यस can think of, that he बिल्कुल। would do the home chores. हाँ हाँ And so amazing that खुद participate करना चाहिए. I बिल्कुल think बिल्कुल। I अब find तो it very करते हैं, therapeutic. अब करते हैं। हाँ I've seen मेरे मेरे तो सारे तीनों मेरे जवाई जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ बल्कि मेरी बेटियां मुझे अक्यूज़ करती है, लगता है आप उनकी अम्मी ज़्यादा हैं और हमारी अम्मी कम हो गई। So sweet. माशाल्लाह दे आर वेरी स्वीट, वेरी हैंड्स ऑन। बहुत मैं जाती हूँ तो मेरे लिए खाने पकाते हैं। Lovely. हाँ एक दफ़ा माई डॉटर वॉज टू गो आउट ऑफ टाउन, तो वो बड़ी वरिड थी, हाय आपका क्या होगा। मैंने कहा डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई कैन मेक इट माई सेल्फ। ये हाँ, क्या बात हुई। आई वाज इन सिएटल, okay. तो देखो मैं नीचे आई तो मेरे दामाद ने मेरे लिए नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ था, हालांकि मैं आई थी कि मैं उनके लिए बनाऊंगी, यू नो। That's lovely. तो वो तो बहुत ही वेरी वेरी गुड कुक बिलाल, माशाल्लाह Wow. वेरी वेरी काबिल इंसान। माशाल्लाह। बल्कि उसका पॉडकास्ट अभी ड्यू है। नहीं, definitely. I If he have comes done। here, if he comes here, तो I would इधर love to तो have him. ओहो इज जीनियस। नहीं, love to have him. अच्छा, so coming back to that writer वाली चीज़, जी जी। कि अच्छा फिर आप राइटर अच्छा कब बनी, वो कुवैत वाले हाँ हाँ इंसिडेंट, अब मैंने वो जी अंदर भेज से दिया, निकली? अंदर से निकली वो, मैंने मुझे कोई आइडिया नहीं था नंबर ऑफ वर्ड्स ये वो फलाना, तो मैंने भेज दिया डॉन को, बिकॉज डॉन वाज द ओनली न्यूज़पेपर इन 1990। और ये कुवैत से भेजा आपने? नहीं आई हैड आ कम गई थी। बैक टू ओके पाकिस्तान। ठीक है। We ओके had come back in 1987 Okay. and this happened to see। अच्छा हमारी ये भी था कि अगर हम उस वक्त 87 में जो हमारे फ्रेंड्स गए थे, they were caught in that situation। ओह अगर हम उस वक्त गए होते तो हम अब उस वक्त उधर ही होते यस जब वो अटैक हुआ and Yes. all that। anyhow so basically डॉन को भेज दिया आपने? डॉन को भेजा, और मैंने कहा, मेरी फ्रेंड ने पूछा तुम किसको भेजिए कहाँ भेजा है, मैंने कहा डॉन को भेजा भाई, नथिंग बट द बेस्ट, इट वाज द टॉप मोस्ट। कहती है कब छपेगा, तो मैंने कहा कभी भी नहीं छपेगा भाई, एंड अननोन राइटर का भला कौन क्या कर सकता है। खैर 3 months लेटर मैं हमेशा आई एम नॉट एन अर्ली राइजर, आई मीन उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, अब हो गई। माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज द अर्ली, और बच्चे भी उठे हुए थे, छुट्टी का दिन था, और ये तीनों भागते हुए एक्साइटेड आए ना मेरे पास कि वो आर्टिकल छप गया था, वाओ एंड दे वाज सो एक्साइटेड। और वो बड़ा ही यू नो पिक्चर्स वगैरह भी, नजीब वाज वेरी गुड इन फोटोग्राफी, माय हस्बैंड, तो उनकी पिक्चर्स भी थी उसमें कुवैत की एंड ऑल दैट, तो वो बड़ा, एंड इट वाज पार्ट 1 टू बी कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट संडे। वाओ सो It was- इट वाज लाइक अ स्टोरी कि अच्छा यार अब Yeah. नेक्स्ट क्या होगा, Yes, नेक्स्ट yes. व्हाट्स द नेक्स्ट चैप्टर? हाँ बिल्कुल। और फिर they got a call from Dawn and they wanted me to write regularly for them। अमेजिंग। हाँ they were wanting to open another section was the review, the Tuesday review। उसकी एक बुकलेट आती थी अखबार के साथ, उन्होंने कहा आप इसके लिए, और मेरी बल्कि उनकी 2 एडिटर्स की तो लड़ाई होगी। अंजुम न्याज कहे कि ये तो मेरी फाइंड थी, तो उधर नजमा बाबर थी कहती है नहीं भाई ये तो हमारे लिए लिखेगी, तो इस तरह करके यू नो। सो आई लव राइटिंग फॉर डॉन, एंड वो कहते थे ना कि पढ़ने का एक ही अखबार है और वो डॉन है, यू नो। अच्छा हाँ इट वाज अमेजिंग, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी good way to start one's writing career, you know। So in those ways, from those times, इस हिसाब से it was paying well also, and I used to teach in the school and Right. write। वो फिर
शौक पड़ गया। ट्वाइस अ वीक नशा है। हाँ तो मैंने उनको बताया कि मैं बुक्स लिख रही हूँ, कहती ये बुक शुक तुम्हारी रह ही जानी है, अब यही होगा। हाँ, क्योंकि वो एक आप करते हैं तो एक और डेडलाइन आ जाती है, फिर एक और आ जाती है। तो टाइम नहीं मिलता होगा, जाहिर बात है, घर भी चलाना है, हाँ, सब नौकरी भी कुछ। करनी है, फिर एंड यू हैव टू राइट द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज राइट। पीपल आर वेटिंग फॉर इट। Yeah, all the whole of the Air Force used to be reading my articles. Even the हाँ हाँ chief, they would be asking, "Oh, भाभी अच्छा वो बोला मैंने पढ़ा अच्छा." I realized पहले मैं जरा women home economics based थी ना, तो फिर मैं टेकिंग केयर ऑफ किड्स का, ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन पे लिख दिया, कोई पिकनिक आउटिंग्स विद किड्स, कोई समर वेकेशंस विद किड्स, कोई खाने वगैरह का लिख दिया। मैंने देखा कि लेडीज़ तो कम पढ़ती है, जेंट्स ज़्यादा पढ़ रहे हैं मेरे। फिर मैंने कहा फिर जनरल इंटरेस्ट के आर्टिकल्स होने चाहिए। देन आई वेंट इनटू इंटरव्यूज़ ऑल्सो, कबीर खान का इंटरव्यू किया और डिफरेंट टॉपिक्स। आई वाज ऑलवेज अ फ्रीलांसर। हालांकि उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी, फुल टाइम जॉब इन डॉन, आई शुड हैव डन इट। लेकिन उस वक्त वलिया वाज ऑन द वे, आई वाज एक्सपेक्टिंग हर। तो फिर मैंने कहा नहीं, आई एम गोइंग टू हैव अ किड, सो आई विल नॉट डू दैट। बट इट वाज अ वेरी गुड थिंग। बट राइटिंग, फ्रीलांस राइटिंग तो आप घर से कर सकते हो, जी। लेकिन ऑफ कोर्स ऑल द रिसर्च के लिए तो आपको जाना ही होता है। जो भी आपने इंटरव्यूज लेने हैं, रिसर्च करनी है, तो हैप्पीली डू इट विद ऑल द किड्स विद मी ऑल द टाइम। अच्छा, सो इफ आई वाज टू राइट जी। नाउ, लाइक व्हाटएवर फेज या जो भी सुनने वाले हैं, मे बी इज देयर एन 18-year-old girl or a 17-year-old boy or whatever age, is there a process to writing? How do you become a good writer, or you just throw everything, whatever comes to your head, you just throw it on paper and organize it later? जी, Like what is आइडियली it? यही है। जब शुरू में ना आप जस्ट राइट योर हार्ट आउट, इट हैज़ टू कम स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। उस वक्त आप मत जोड़ें कि ग्रामर है तो फुल स्टॉप, तो कैपिटल लेटर, ये चीज़ों में मत फंसे। लेकिन मेरा ये था, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी बिन प्लानिंग टू राइट अ बुक, सो आई हैड लर्नड टाइपिंग, आई वाज ऑलरेडी कंप्यूटर लिटरेट। ठीक है, आई वाज अ कंप्यूटर टीचर। और मैंने उस ज़माने में होता था वर्ड स्टार, वर्ड स्टार रिलीज़ 1, रिलीज़ 2, ये सारों से फिर जी मेरे ये आप बहुत हाँ ठीक है। बहुत पहले की बात है। मुझे मैंने बिल्कुल उससे भी पहले के काम किए हुए हैं। नजीब जबरदस्त। और मैं तो वी वर लाइक पायनियर्स, बिकॉज एक लग्जरी थी एक कंप्यूटर होना, जब हमारे जी। कंज्यूमर्स के पास, वैसे जब 90s के अंदर आया था, तो हम हाँ, तो मतलब it was like wow, you know. या And I remember my brother and sister were studying computer sciences in पंजाब वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, PCB and PICS होते थे उस वक्त। बट उस वजह से फिर वो एक बाहर से भाई ने कंप्यूटर भेज दिए, and it was like wow man, ये क्या चीज़ है। जी, So it was like आपने तो उससे बहुत पहले कर चुकी हैं। बहुत। It's हमारे amazing. घर में हमारे बच्चे, they were born with the Hmm. you know the mouse in the hand. कुवैत में मुझे याद है कि मुझे माउस आ गया। अच्छा, माउस उसकी शक्ल कैसी होगी, उसे देखेंगे। आई Yes. रिमेंबर वेटिंग फॉर आवर्स इन शॉप्स। जी, माउस का ऑर्डर दिया हुआ था, अभी तक पहुंचा And I नहीं है। think वो बॉक्स होगा जिसमें वो बॉल होता था, प्रॉपर बिग वाला। बॉल वाला नहीं नहीं, था वो दूसरा आया हाँ, प्रॉपर, अच्छा हैंड दूसरा हेल्ड। जो, हाँ, हैंड हेल्ड वाला विद अमेजिंग। अ वायर ऑफ कोर्स। तो सारे स्टेजेस वी वेंट थ्रू। और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यस वो ट्रू। और आजकल एप्पल। तो अच्छा, so you just write your heart out. Is there a technical skill that you need to learn to be a good नहीं, writer? आई एक्चुअली मेरा टेम्परामेंट ऐसा है कि वट एवर आई एम डूइंग, आई लाइक टू रीड अप ऑन इट एज मच एज पॉसिबल। सो उस ज़माने में भी और आजकल भी, आई एम लाइक व्हेन आई गो टू अमेरिका एंड ऑल, या यहाँ राइटर्स मैगजीन्स आती थी और आर्टिस्ट्स मैगजीन्स आती थी। इन ऑल द गुड बुक शॉप्स यू कुड बाय these magazines। Very अगर आप niche, just for the writers, other writers. यस। और अब तो अगर आप अमेरिका जाते हो तो स्क्रिप्ट राइटिंग के अलग बुक्स हैं, Yes. ब्लॉगिंग की अलग बुक्स हैं, यू नो, मैगजीन्स हैं। मैगजीन, द मैगजीन्स आर फार मोर एक्सपेंसिव दैन द बुक्स, Hmm. यू नो। $38, $48, जबकि बुक आपको 10, 20, 30 की आ जाएगी। लेकिन वो जो मैगजीन्स हैं वो 48 तक की एक मैगजीन होगी। I think it would be more precise, that's why. No? नॉट नेसेसरली, यू अच्छा। हैव टू सी कि भाई आपको क्या चाहिए, आप वो देखो। कई दफ़ा यू थिंक कि वो बहुत ही यूज़फुल होगी और एम ही फजूल होती है, एंड कई दफ़ा उल्टा होता है कि आप सोचते हो कि इतनी तो अच्छी नहीं थी, लेकिन देन यू फाइंड समथिंग वेरी यूज़फुल। बट द राइटर्स मैगजीन इज़ एक्सीलेंट। सो देन आई स्टार्टेड इंडल्जिंग इन दैट,
एंड आई स्टार्टेड लर्निंग. फिर अब तो खैर यार आपके तो क्या ज़माना आ गया आजकल के, यूट्यूब में यू जस्ट सर्च एंड राइटिंग के ऊपर आप एडगर एलन पो और वेरी फेमस राइटर्स की यूट्यूब पे उनकी आज अर्नेस्ट हेमिंगवे, his tips on writing and things like that. You have these short videos which give you such good tips about how to write, you Right. know. But the biggest one was sit down and write. I think that's the most important. बंदा सोचता रहता है हाँ मैं ऐसे करूँगी या करूँगा, ऐसे Never. लिखूँगा, जब ये होगा ना तो ये. Never. But you have to just do it. और मेरी Yeah. आदत बन गई ना. Yeah. I had to dish out 2 articles a week. ठीक है, वो मेरी आदत है. I've done it for 25-30 years now. Wow. लेकिन अब पिछला 1 साल में वो लैपटॉप चेंज किया और वो सारा, तो एक जैसे ना, अच्छा फिर मैं बीच में व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, पॉडकास्ट भी कर रही हूँ, स्टोरीज भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन वो राइटिंग की जो अर्ज थी ना, Hmm. दैट वाज़न्ट सेटिस्फाइड. आई मीन दैट हैड टू बी डन. वो उसकी अपनी जगह है. So true. राइटिंग इज कैथारसिस. Catharsis, yes. Yes. इट्स रियली कैथारसिस. अच्छा फिर उस प्रोसेस के बीच में आप करते 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 चीज़ें होने लग जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें. It's ilham. It's true, you It's- manifest it, I yes, think. it's When just- you give it life, I and think. and things happen which you yourself never expected. You say, wow, ये भी हो सकता है, ये भी पहलू है. Just because you thought it and then you wrote it. You Yeah. have to be in a certain place for a thought to come. Till you are not there, that thought will not come. But there is this urgency, this need in your side, inside के want to do something. अच्छा मैंने ये इस टॉपिक पे लिखना है, मैंने करना है. फिर आपने अपने लिए मेरी एक स्पिरिचुअल गाइड है माँ जबीन. शी इज़ अ ग्रेट पर्सन और वो हर एक से नहीं मिलती. मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है कि वो मुझे टाइम दे देती है. Amazing. अल्लाह उनको जज़ा दे. Amazing. तो वो कहती हैं कि कोई भी काम, किसी चीज़ का आप इरादा करो ना, वो कभी पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके लिए एक वक्त ना रखो और एक जगह ना रखो. अगर सिर्फ वक्त रखोगे जी मैं 9 to 10 काम करूँगी तो भी नहीं होगा, क्योंकि कहाँ काम करूँगी ये तो डिसाइड ही नहीं जी. किया. आपने जगह भी रखनी है और टाइम भी रखना है. एंड देन यू हैव टू मेक स्पेस इन योर रूटीन. तो मेरी रूटीन में ये होता था कि ऑफिशियली 9 o'clock द चिल्ड्रन वर सपोज टू बी इन बेड. वो बेड टाइम स्टोरीज और लोरीज और वो सारे 10 बजे तक चलती थी, फिर जाके वो सोते थे. Same. अब मैं पूरे दिन की थकी हुई, लेकिन 10 to 1:30 वो Wow. टाइम स्लॉट होता था मेरा जिसमें मैं You just write. आई कुड राइट. या वही ना, जैसे अब आप अभी ये रिकॉर्डिंग इस वक्त कर रहे हैं, Hmm. वो इसीलिए कर रहे हैं ना, बिकॉज आप वो दिन के सारा गुबार उतर गया, बैठ गया. नाउ यू कैन डू इट. Hmm. ओनली थिंग यू आर डीलिंग इज विद अ टायर्ड बॉडी, Yeah. बट द टायर्ड बॉडी यू कैन मैनेज. Hmm. And your mind is getting refreshed by the fact that you're doing something, Something that you love to do. I think that is the most important, and very few, like, people need to understand this. And I have always been such a big advocate. Jab se I came into teaching, because that gave me such a high after corporate jobs, that जो जब आप अपनी शौक का काम करते हैं ना तो फिर वो काम नहीं लगता. It just happens so naturally. So प्रॉब्लम naturally. ये है कि जैसे अब मेरे जो ड्राइवर हैं, जो मैनेजेस एवरीथिंग इन माय होम, कहते बाजी आप 4 घंटों से बैठी हुई है, उठे. हाँ. मुझे पता ही नहीं. टाइम मुझे का नहीं लगता है कि आइडिया मैं- होता. हाँ. Yes, because you're doing I मजा आ don't रहा है. know. I'm doing every. अब तो I'm my own boss. I'm doing what I want to do when Yeah. I want to do it. Yeah. But then I don't know how to control myself. मैं अपनी सेहत का भी तो देखना है ना. Yeah, हर चीज को साथ हाँ, लेके चलना है. सच बाजी उठे, अभी आप ख्याल रखें, बाजी मैं आपको ये देता हूँ, वो देता हूँ. He gets worried, you know. अमेजिंग. अच्छा, सो ये जो मतलब दिस होल स्टोरी, एंड देन शौक पड़ा. पहले पेंटिंग का तो आप बचपन से कर रही हैं, एंड देन I was doing your exhibitions. हाँ, अच्छा हाँ, and then your life turned into different phases in which you fell into love with writing, right? Yeah.
Were you deliberate in guiding and directing your children towards this art form, or arts, and you need to express yourself, या उन्होंने खुद ही pick up किया naturally, they are like that, या आपकी deliberate एक परवरिश थी कि भाई नहीं, you need to express yourself, you need to do this, you need to do that? ओके, पहली चीज़ तो ये थी कि लाइक नतालिया नादिया माई एल्डेस्ट टू जब छोटे थे तो वी वर इन कुवैत एज आई मेंशन, तो सारा वक्त होता था कि हाउस वर्क। अच्छा, कमिंग फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स, अच्छा होम इकोनॉमिक्स की बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि आपके ऊपर एक ठप्पा लगा होता है, अच्छा एवरीबडी इज लुकिंग, अच्छा ये तो होम home इकोनॉमिक्स economics की का बड़ी घर कैसा होगा, इसके बच्चे कैसे वो होंगे, एक स्टैंडर्ड हो जाता है, आई देखो थिंक, उफ कि होम इकोनॉमिक्स की वाली का तो जी, घर इतनी तो प्रेम प्रॉपर। हाँ फर्स्ट अच्छा। क्लास होना चाहिए। लोगों का तो खैर जो होगा, आप खुद भी हो जाते हो थोड़े से, यू नो, बिकॉज़ यू स्टडीड इट ऑल एंड ऑल दैट, यू वांट हम्म, सो जी हर चीज़ का टाइम टेबल, अभी भी मैं टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती हूँ एंड ऑल दैट। सो एवरीथिंग, तो पूरे हफ्ते में मुझे सिर्फ 2 घंटे मिलते थे। आई रिमेंबर ट्यूसडे को या वेंसडे को, 2 दिनों में 2 2 आवर्स मुझे मिलते थे जिसमें मैं पेंटिंग कर सकती थी इफ़ आई वांट टू। दूसरा ये था कि हम पिकनिक पे कहीं जाएंगे बाहर, तो माई हस्बैंड कैन लुक आफ्टर द किड्स एंड देन आई कैन पेंट, वाह, यू okay, सी। घर में तो वो अच्छा, फिर क्या होता था कि जब मैं पेंट कर रही हूँ, मेरा सबसे बड़ा ये था कि लोग ये कहते हैं ना कि मैं पेंटिंग नहीं कर सकती, बच्चे बीच में आ जाते हैं और वो चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ये वो, तो फिर उनका अपना पेंट, उनके अपने पेंट्स, उनके ब्रशेस, उनका पेपर, सब कुछ उनको दे अलग लगा होता था साथ ही। और इधर मैं काम कर रही हूँ, इधर उनके लिए है, इफ़ दे वांट टू डू इट, दिस इज़ योर क्रेयॉन, दिस इज़ योर पेपर, दिस इज़ योर ब्रश पेंट, यू कैन डू इट ओवर हियर। hmm. So that opportunity I gave them, and then I didn't dictate कि अच्छा baby ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, no, whatever they wanted they did it, and they had the materials, The tools you provided, the tools. yeah, and the time कि भाई, and they saw me doing it। अब मैं कहती हूँ कि लोग कहते हो जी मेरी शादी होगी मैंने पेंटिंग छोड़ दिया, भाई आपने खाना पकाना तो शुरू कर दिया, Hmm. क्या आपने खाना पकाना छोड़ा? यू डोंट, हालांकि सबसे डेंजरस चीज़ खाना पकाना है, it's dangerous, you next to the fireplace, you're working on that, उबलता हुआ पानी है, खाना है, so you're doing that, so you're doing all those things which are important for the house, Yeah, but you're not doing something which is important important to for you. you, Yeah. so you, it's, and the house is yours। अब किसी, मेरा मियाँ, भाई मियाँ बिजी है, दफ्तर में है, वो अपना काम कर रहा है, Hmm. it is your, up to you to make time and space for yourself in your own home Yeah. for this, True. Yeah. so who's responsible? हम खुद ही हैं। एंड द चाइल्ड शुड बी एबल टू एक्सेप्ट कि ये किताब अम्मी की है, उसने किताब पढ़नी है, ये मेरी किताब है, ये मैंने पढ़नी है। अब बुक शॉप में हम जा रहे हैं तो बच्चों को खुली छुट्टी होती है, हालांकि वी वर वेरी हार्ड अप, फोर्सेस में हम लोग इतने कोई अमीर तरीन नहीं होते थे, हमारे पास गिनती के पैसे होते थे और अक्सर वो पैसे महीने के शुरू में ही ख़त्म हो जाते थे और बाकी महीना हम गुजारा कर रहे होते थे। लेकिन किताबों के लिए आई कुड नेवर से नो टू माई चिल्ड्रन, तो कि भाई किताब तुमने अगर ख़रीदनी है, कोई स्टोरी बुक है कुछ, तो यू फ्री टू गेट इट। Hmm. So my eldest daughter was very good and you know she loved books and she read a lot. So books को फिर नजीब भी पढ़ते थे। तो थिंग वाज कि हमने उनको वो वाला माहौल दिया बिकॉज हमने अपनी लाइफ से इन चीज़ों को जाने नहीं दिया बच्चों के आने से। दूसरा, लोग क्या करते थे, अब तो खैर अखबारें होती नहीं, बच्चों को अखबार पकड़ा दी, वो फाड़ रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है, कॉपी फाड़ रहा है, वो पुरानी कॉपी पढ़ी है उसको फाड़, नो, दैट इज़ अ सैंक्टिटी ऑफ द रिटन वर्ड, यू डोंट टेयर इट एंड थ्रो रिटन वर्ड। हम कुरान शरीफ का करते हैं, Yeah. बट द सेम थिंग अप्लाइज टू एनी बुक। एक किताब आपको इल्म देती है, आप उसके पर्चे उड़ा रहे हैं, उसके जहाज़ बना के उड़ा रहे हैं, And you're letting it happen. and you're letting it happen, you're also joining in and doing it, you're not realizing कि it's a इसकी एक Sacred thing. सैंक्टिटी है। Yeah. Yeah. इल्म, इल्म जिस चीज़ से आती है उस चीज़ की हमने इज्जत करनी। सो आप खुद भी इज्जत करो और बच्चों को भी उसकी एग्जाम्पल बन के दिखाओ। आई मेरे तो सारा ये पेंटिंग आर्ट वगैरह, यूज्ड टू गो फॉर एग्जीबिशंस, गो पेंटिंग, इनको पता, आई वाज एक्सपेक्टिंग वाली, आप 8th month में थी जब मैं
I had my very huge exhibition in VM Art Gallery, Karachi. तो सारे हंस रहे कि हालत देखो इसकी पेंटिंग एग्जीबिशन कर रही है. Hmm. So, and the other two children were also there, and they used to be so proud. They feel so happy कि मामा ने पेंटिंग किया है, मामा की एग्जीबिशन हो रही है पेंटिंग्स की. The children love it, you know. You That's amazing because हाँ, you provided that forum to them yes, and yes, you provided those tools and chances and yeah, opportunities. हाँ, and And मैंने पूछा भी इसीलिए because so that जो parents हैं या जो बाद में parents जी, बनेंगे they can actually they हाँ, you know take some lesson from it कि बच्चे को ज़्यादा या तो ज़बरदस्ती करने के बजाय कि भाई तू इंजीनियर ही बनेगा या तू लॉयर ही never, बनेगा, never. उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें और फिर देखें कि वो किस में अच्छा है किस में अच्छा है और जहाँ खुद करके दिखा. अगर आपको इतना शौक हो रहा है कि आप जी, उसको इंजीनियरिंग के अंदर हाँ, डालें तो फिर उसको एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाएं बिल्कुल कि उसको भी सही, वो शौक पैदा हो कि अच्छा यार हाँ, वाह इंजीनियरिंग ये होती है, हाँ, राइट. बट ज़बरदस्ती करने से विदाउट आई थिंक लिविंग इट इन फ्रंट ऑफ देम इज इट्स एक वो मैच नहीं बनता. So you're an amazing artist and then you showed them कि you're enjoying what you do. yes, So I think they picked up that कि you know she's happy. इवन नाउ दे रिमेंबर. कहते हैं जब हम स्कूल से अगर किसी दिन आए एंड वी फाइंड यू पेंटिंग, तो द हॉल घर का पूरा एक और ही वाइब होती थी, क्योंकि आई हैव ऑलवेज पेंटेड विद म्यूजिक प्लेइंग. एंड अभी भी ऐसे ही होता है कि भाई म्यूजिक लगा के, राइटिंग भी मैं ऐसे ही करती हूँ. लेकिन देन राइटिंग में फिर मैं ज़रा ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, विच इज़ नॉर्मली द केस, तो उर्दू का गाना बेशक लगाओ. आई डोंट नो ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन चक्कर है या अच्छा. क्या है, या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाओ तो फिर उसके साथ काम हो सकता है बहुत Focus अच्छा. is required. या Yeah. या इट Yes. आल्सो शट्स आउट ऑल द अदर साउंड्स बिल्कुल व्हिच आर सही. डिस्टर्बिंग. आई डोंट नो हम कहाँ से बात शुरू हुई थी और हाँ तो कहाँ पहुँच गए. नहीं it's amazing because it's all about arts and then you also क्योंकि बच्चों की तरबियत भी एक बड़ा जी important part है and I हाँ think you have gone through those phases यस that people need to learn this important lesson कि how to bring them up and ठीक है बाकी हम एक certain expectations रख लेते हैं बच्चे से कि ए बच्चा मेरा ए बनेगा ए बच्चा ए बनेगा ए बच्चा ए बनेगा लेकिन उसके नेवर अंदर नेवर उनको यू गिव देम टोटली द अगेंस्ट. अपॉर्चुनिटी. आई थिंक पेरेंट का इम्तिहान ये है कि वो अपॉर्चुनिटी दे सकता है या नहीं. इसकी बड़ी खूबसूरत किसकी है, जबरान, व्हाट्स हिज नेम यार. द पोएट. Yeah, yeah. The children don't come from you. You know, they're there. They are for another time. आप ये ना समझो, they are not yours. ये आपकी they're not supposed ऑब्जेक्ट to नहीं live है. your हाँ, और ये एक और वक्त के लिए है. yes. आप क्या इंजीनियर बना रहे हैं भाई, उस वक्त पता नहीं है क्या क्या होगा. वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, वो कुछ और होगा. कि 20 साल बाद उसको हाँ, अपनी जिंदगी गुजारने जी, दें. हाँ. उसकी और रिक्वायरमेंट्स होंगी. और देखो हमने क्या सिखाना है, वैल्यूज. हम्म. सच बोलो, सच्चाई हमेशा रहेगी, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी. अब बच्चों को हम कह रहे हो सच बोलो, तो खुद उसके सामने 4 दफ़ा झूठ बोल के बच्चा कैसे देखता नहीं है. ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग. True. वही ना कि वो गेट पे कोई आपका हाँ पूछ रहा है जाओ कह दो कि नहीं हो. हाँ मतलब अब या आप घर पे हैं आप मुझे झूठ बोलने का कह रहे हैं जी एंड वी ट्रेन इट लाइक दैट एंड राइट. वी थिंक इट्स फाइन और फिर जब बच्चा आपके साथ झूठ बोलता है फिर आप लगाते हैं एक उसको कि ओए लगाते हो. मतलब और इसकी एक और भी बात है. आई हैव रिटन अ ब्लॉग पोस्ट ऑन दिस के ट्रूथ अबाउट लाइज. एक तो ये कि जब डॉक्टर बच्चे को कहा जी मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और वापस आ रहे हो शॉपिंग बैग्स लेके बहुत सारे. जी मैं तो बच्चा समझ गया जी डॉक्टर के पास किधर से दुकान आ गई, हाँ तो आप तो बहुत सारी चीज़ें खरीद के आई हैं, तो असल में तो वो शॉपिंग के लिए गई थी. यू नो, सो द थिंग इज के यू गॉट टू वॉक योर टॉक. या दैट्स द होल थिंग. ट्रू. अच्छा throughout all these phases where was the aspect of spirituality and how connected were you या जिंदगी के अंदर कुछ phases आए जिसमें you became more you know एक तवक्कुल और दुआ वाला जो aspect है या being more connected to God. How do you feel that spirituality aspect in dictating life or helping you in life? I have a memory of myself
as a 6-year-old in PMA Kakul. रात होने वाली नॉर्मली तो होता है ना, बस मगरिब की अजान जहाँ भी हो वापस आना है घर. घर आना है. उधर मैं देर होगी, किसी को पता नहीं किन के घर गई हुई थी. अब आई रिमेंबर दैट डार्क प्लेस. अभी अब पूरी डार्क नहीं हुआ, लेकिन मगरिब का जो आखिरी टाइम होता है ना वो वाला. अब मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आई एम वेरी अवेयर कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं होगा. एंड अल्लाह मियाँ वॉज लाइक, क्योंकि कॉमिक्स बहुत पढ़ते थे, लाइक अ फ्रेंडली जायंट, यू नो, बड़े होते हैं ना अल्लाह मियाँ, बड़े होते हैं. Hmm. So he is right walking next to me. So I have nothing to worry. I'm walking around and there's God with me. अब मैं जी घर पहुंची हूँ, अच्छी खासी डांट पिट गई. तो मैं कहा अल्लाह मियाँ मेरे साथ है. तो आप कहते हो कि अल्लाह मियाँ नहीं है, तो अल्लाह मियाँ तो है ना साथ, Yeah. तो फिर डरने की क्या बात है. So they had to teach me. अल्लाह मियाँ तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा खुद भी ख्याल रखना होता है. Wow. Was this the product of your parents having that instilled in you? Yeah, हाँ. this was just you खुद ही बस अल्लाह की तरफ से. Actually, बिकॉज अभी मैं बात लेके जाना चाह रहा हूँ कि तरबियत वाइज जिस तरह हमने बात की ना कि अच्छा यार चीज़ें सिखानी होती हैं, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी होती है, बी एट हाउ टू बी अ गुड वाइफ, बी एट हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, और बी एट हाउ टू बी अ गुड यू नो वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, राइट. सो लाइक उस एस्पेक्ट में कि वो तरबियत कितनी ज़रूरी है कि बच्चे को ये सिखाया जाए कि भाई अल्लाह है. कोई चीज़, वही बात, मैं हमेशा एग्जाम्पल की बात करती हूँ. अच्छा मज़े की बात है, एक तो माय फादर बहुत, मतलब, मुस्लिम. माय मदर वाज अ क्रिश्चियन, शी वाज अ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन. और कभी उनके अंदर मैंने कोई किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं देखा. अच्छा, दोनों रिचुअल्स में नहीं थे, नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट. अम्मी कभी चर्च नहीं की, मैंने खुद कभी चर्च अंदर से नहीं देखा था, यू नो, नेवर. शौक मुझे बड़ा था कि क्या होता है उधर. Hmm. वो तो वैसे ही होता है ना, हर रिलीजियस बिल्डिंग का आपको होता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, वट एवर इट इज़. बट द थिंग इज़ के फेथ इन गॉड जो मैंने अपने पेरेंट्स का देखा है, आई हैव येट टू सी. मैंने बुरे से बुरे वक्त में उनको देखा है, अच्छे से अच्छे वक्त में देखा है. वेरी फोर्थराइट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. उनका ईमान अल्लाह पे, मतलब, या मतलब Unwavering. आप वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती थी. इट वाज जस्ट देयर, अ फैक्ट विच वाज देयर, अनडिनाइबल फैक्ट. हमेशा सच बोलना दोनों ने, Hmm. नेवर. झूठ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना. बुरा से बुरा काम किया हो, लेकिन आप सच बोल दो कि हाँ मैंने किया है, Hmm. तो फिर दे विल नेवर से एनीथिंग. That's ये so बात होती important. है. दिस इज द थिंग विच आई हैव रिटन इन द ट्रूथ अबाउट लाइफ. क्यों हमारे लोग झूठ बोलते हैं? क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते, या सुन सकते नहीं हैं. और उसकी सजा ज़्यादा है, सजा में मिलती है. ज्यादा लगते हैं. आप उसको ये तो देखो कि उसको कितने गट्स लगे हैं That's right. एक चीज के ऊपर सच बोलने में. आप वो उस बात का उसको इनाम दो कि देखो तुमने सच बोला है, अगली दफा ख्याल रखना. Hmm. गलत काम था, गलत है, Hmm. या इसके लिए सजा भी होगी, Hmm. लेकिन तुमने सच बोला है, उसके मार्क्स मिलने हैं उसको. Hmm. बिल्कुल. उसकी सच्चाई को अप्रिशिएट और वैल्यू करना है आपने. Hmm. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. So true, so true, and very important for all the parents to take a note of this. एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. डोंट ट्राई टू प्रिटेंड टू बी एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. मत झूठ बोले बच्चों के सामने, यू नो. बोल दो भाई मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, या आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट व्हाट प्रोग्राम्स दे आर वाचिंग ऑन टीवी. भाई ये बड़ों का प्रोग्राम है, Hmm. बच्चों का नहीं है. Hmm. दैट्स इट. Boundaries. केस क्लोज्ड. Yeah, ठीक है. बड़ों का है तो बड़ों का है. अब आप लोगों ने नहीं देखना, आप लोग जाएं उस कमरे में. आई हैड देयर टीवी, उनके लिए अलग होगा. उसका जो मेन, तब तो डिश होती थी, तो वो डिश का जो मेन चीज़ मेरे घर कमरे में होता था. सो आई कुड Monitor मैनेज, and हाँ, मॉनिटर, change the channels. हर चीज़ पे बड़ा कंट्रोल. नहीं, it's a proper 24/7 job Yes. in itself to raise हाँ, good human beings. या To Yeah. good. हाँ.
अच्छा. अच्छा, उसमें ये था कि बिकॉज अब मैं आई रियली गिव माई मदर अ लॉट ऑफ क्रेडिट. हम जहाँ भी पोस्ट होते थे, अम्मी यूज टू गेट मी द बेस्ट मौलवी, एंड शी यूज टू मेक श्योर कि वो मुझे कुरान शरीफ पढ़ाएंगे सही तरीके से और मतलब के साथ पढ़ाएंगे. तो Despite मैंने being a Christian herself, she would make शी sure. शी वॉज अ ग्रेट पर्सन. What a gem person. Amazing. आप उनकी बस मैं बता नहीं सकती. Wow. कौन का मुझे अगर देख लो, अगर मेरा एक बच्चा हो क्रिश्चियन, उल्टा करे, Hmm. क्या मैं उसको बिठा के रोज बाइबल पढ़वाऊंगी? Will I get the best priest to come and teach my child the Bible every day? Will I do it? My mother did it. How? She made sure, and she would find out कि अच्छा मौलवी कौन सा है ये वो. And she would keep an eye on me. She would keep an eye on the मौलवी. She would make sure कि I am being taught by the best. And she said, "What do you mean कि Arabic में पढ़ रहे हो, तुम्हें मतलब ही नहीं पता? If you don't know what you are reading, तो फिर फायदा क्या हुआ?" Yeah. So from day one, that's how it was. So I've grown up like that. So I did the same with my children. All of them have studied the Holy Quran with meanings from the beginning. Wow. Yeah. That's so important. अच्छा, अब So मुझे important. सबसे पूछा आपने क्या परवरिश की है, क्या है? इट्स नॉट अ थिंग. मैं कहा मैं टेक्स्ट में तो नहीं बता सकती ना. लिख दें book एक. नहीं, आई हैव रिटन हाउ आई ब्रॉट अप माय डॉटर्स, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. That's amazing. तो मेरी 2-3 चीज़ें हैं कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी में एक तो कुरान शरीफ मतलब के साथ करना, नमाज की आप एग्जाम्पल बने, डोंट मेक इट एन इश्यू, उनको राग़िब करें उस तरफ. प्यार से. अच्छा, अब लेटली अब मैं कई चीज़ें, अब मैं चीज़ों में आ रही हूँ, जैसे बहुत इसमें हमारे यहाँ वैसे मैं एक मिनिमलिस्ट मुसलमान बनती जा रही हूँ. कम टू द हार्ड कोर रियलिटीज एंड द फैक्ट्स, हम वो तो फॉलो कर लें पहले. लेट्स बिकम Basics. गुड एट इट. Yeah. 5 वक्त की नमाज, Hmm. मैं आई यूज्ड टू गेट सो कॉम्प्लेक्स कि मुझसे 5 वक्त की नमाज नहीं होती. एक पढ़ लेती हूँ, दूसरी मिस हो जाती है, दूसरी पढ़ लेती हूँ, तीसरी मिस हो जाती है. यू नो, इट वाज सच अ स्ट्रगल ऑलवेज. Hmm. तो मुझे आई ऑलवेज लाफ अबाउट एवरीथिंग एंड इंक्लूडिंग दिस, कि जब मैं फौत होंगी तो लोग कहेंगे बड़ी बाकायदगी से 3 वक्त की नमाज पढ़ती थी, बड़ी अच्छी थी. But वो बात है ना कि you have to keep making efforts. ऑफ कोर्स. You have to keep making effort. तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं देख लेते हैं ना कि अच्छा. आई You वाज know? ऑलवेज क्लोज टू गॉड, ऑलवेज. अच्छा, अम्मी यूज्ड टू ऑलवेज तुमने ये बुरा काम किया था ना, अलम ये देख रहे थे तो अब देखा मैंने क्या हुआ, अल्लाह मियाँ ने तुम्हें सजा दिया. तो आई हैड दिस प्रेजेंस ऑफ गॉड, Always अवेयरनेस instilled in you. all the Yes. time. And it wasn't कि भाई डरने की चीज़ नहीं है. Huh. God is somebody who loves you Yeah. and he looks after you, he does things for you. And I've had that dialogue going on. Dialogue, I'll say, not a monologue, not a one-sided relationship with God. It's a God answers me. And he does. Amazing. I've had And isn't it a sweet experience when that Sweet? happens? It's just like exquisite. wow. You know? And you feel so humble. You feel so, मैं मिट्टी में हूँ, Yes. मैं कुछ नहीं हूँ, और उस ज़ात ने मुझे You know, still मुझसे loving बात me, you know, की. and still listen to me. ही नोज व्हाट आई एम. मैं कितनी फजूल किस्म के इंसान हूँ, फिर भी वो मुझसे प्यार करे, फिर भी वो मेरी बात सुन रहे. सो इट्स गॉड इज ग्रेट. Indeed. मैं तो ऑल द टाइम ओह गॉड, How beautiful. मैं are क्या you? कहूँ हाँ, तुझसे, it's तूने amazing. क्या नहीं किया मेरे लिए, क्या अल्लाह. each thing, each little thing. अब मैं जो मेरी एक चीज़ है, जैसे वो कहते नमाज में जो आप डाइवर्ट हो जाते हो, डाइवर्ट नहीं होते. अब मैं काम छोड़ के गई हूँ ना नमाज पढ़ने, और नमाज पढ़ रही हूँ, उस वक्त जो मेरी चीज़ दिमाग में थी, उसका हल जो है वो मुझे कुरान पढ़ते हुए सडनली मैं हल के लिए नई नमाज पढ़ी, ना मैंने दुआ की है, लेकिन उसका हल निकल आया. ओह माय गॉड, इतनी आसान सी बात थी. Hmm. You Hmm. know, I was just like, oh my God. It was like, okay, I know. Special. You did it. It's really special. It's amazing. Acha, have you like one of the most vulnerable times that you have felt yourself to be? Many, Many?
Many. Just Of one. course. And how did Naturally, you? you don't want to share it with anybody because your most vulnerable parts times are with God. Yeah. उस वक्त आप होते हो और खुदा होता है और कोई नहीं होता तीसरा. Yes, I have very very great friends. बस अल्लाह ने मुझे दे दी. उसने मुझे बहन भाई नहीं दिए ना, इसलिए कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी. He was going to give me some even better wonderful people. He didn't give me sons because he knew I didn't need them. और सारे लोग हाँ बेचारी देखो कोई बेटा नहीं. मैं कहती हूँ मेरी बेटियाँ है. Hmm. बल्कि मैं और मैं एक दिन किसी को देयर वाज एन ऑफिसर ही है ओनली हैड सन्स ना, तो पता नहीं क्या बात हुई तो मुझे कह के हम लेट नाइट सब पार्टीज पे जाते थे, तो भाभी आप क्यों नहीं जाती. मैंने कहा भाई माय डॉटर्स आर रेस्टिंग, सो रही है, उस वक्त सुबह स्कूल जाना, तो आई कैंट लीव देम अलोन. ये वो नहीं नहीं हम तो बच्चों को छोड़ जाते, तुम लोग भी करते. मैंने कहा इसीलिए तो खुदा देख के बेटियां देता है, ऐसे नहीं देता हर एक को. Amazing. कहते हैं Yes. आपने मेरे दिल पे छुरी मार दी. So true. मैं कहा बेटियां हैं तो जिम्मेदारी है कि ये क्या दुनिया की चीज़ें पार्टियां कर लेंगे अटेंड, Hmm. यू नो. कभी एम्बेसी की पार्टी है तो पेरेंट्स जनाब बच्चों को लॉक करके घर में चले जाना है. नो यार छोड़ दो, कोई बात नहीं एम्बेसी पे नहीं जाएंगे. Yeah. कौन सी मौत उम्र पड़ पड़ी है, जाएगी? कौन सी मौत पड़ जाएगी यार. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. हमने बड़ा अच्छा सिलसिला किया कि 2 हम कपल्स थे, हमारे अपने फ्रेंड्स थे, तो हम उसी एक होटल में था वो फंक्शन, तो हम बाहर एक कपल बाहर बैठ जाता, दूसरा कपल अंदर जाके फेरा मार के आ जाता. मुझे हमने अटेंड कर लिया फंक्शन, थोड़ी देर उसने उसकी बेबी सिटिंग की, दूसरे ने फिर जाके अपनी कर मिलजुल लिया. के हो हमने गया. हाँ मिलजुल के हो गया. सो इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड not to do these things with your child, you'll find a way. Yeah. True. You'll definitely find a Yeah, way. True. It's just the attitude. So, is vulnerability a weakness? Is it like because it's portrayed and painted to be a weakness ना कि आप vulnerable नहीं होना चाहिए भाई, लेकिन हाँ उसका एक अपना उसी वक्त में तो है. आप भी you find yourself cancer में. I had times when I was totally vulnerable. I had very very bad times in it. Yes. हर वक्त मैं हंस देती हूँ, तो दुनिया को तो मैं यही बताती हूँ. हाँ नेचुरली इट्स कैंसर यार, उसका नाम It's very ऐसे तो नहीं profound. Yes. हौलनाक इतनी चीज़. True. So there were times when it was really bad, you know. So it was very vulnerable. Acha, but there have been many times. What Wh- helped in those situations? What helped friends? अच्छा. Them walking in. I mean, अब जैसे मैं बड़ी सख्त बीमार थी, बहुत सख्त बीमार थी. अब मेरी फ्रेंड ने लाहौर से फ़ोन किया वलिया को कि मैं आना चाहती हूँ वलिया से मिलने के लिए. तो मैंने उसको कहा कि उसे को मत आए. Hmm. I don't want my friends to see me like this, so to be with me when I'm not fit enough to entertain them. तो मैंने उसको बोलो कि मत आए. तो वलिया ने उसको कहा कि आंटी खाला आप मत आए, पर अगर आ जाए तो कोई बुरा बात नहीं होगी. बड़ी गंदी. That's what she didn't tell me at that time. पर उसको कहा कि शी इज रियली बैड, यू नो. तो अम्मी कह रही है मत आए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप आ पैगाम भी जाए. दे दिया हाँ. लेकिन ताकि आपको झूठ ना बोले कि हाँ. हाँ. तो वो पहुंच गई, स्मार्ट, शी स्मार्ट. लाहौर से आ गई. हाँ. और पूरा दिन उसने मेरे साथ गुजारा और मैं सारी बीमारी भूल गई. I अल्लाह. became all right. You know? The blessing and the तो what ये good अल्लाह ने friends भेजा ना. can do. हाँ. Yes. और मैं भूल ही गई. And I was down in the dumps. इसी तरह एक और दफ़ा इसी तरह था, मैं बहुत ही मतलब नीम होश में थी. और फिर आई सी दिस सादिया माय फ्रेंड, शी लाइक एन एंजल, यू नो. तो उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है. अच्छा इन सब को होता है कि इसको नज़र लग गई. मेरी सारी फ्रेंड्स को गम होता है तुम कुल पड़ो चारों अपने पे. मैंने कहा मैं कहाँ से इस उम्र में कुल पड़ो अपने ऊपर. नहीं नहीं तुम्हें नज़र लग गई. वो जी फिर बैठ के आके दम कर रही है और पता नहीं अच्छा. क्या क्या पढ़ रही है. भाई पढ़ो कोई बात नहीं, कोई अच्छा ही चीज़ें होगी. It's beautiful to have good friends. It's हाँ. such a blessing उफ. to have people who care about you and who can truly be that, that that blood-like bond with you. I have had this relationship with my Tarkan, with my driver, with my my Batman, my maid.
यू नो they just अभी मेरे मैं आपको कह रही थी ना पेन मुझे बहुत हो रहा है, ये वो पेन की बात हो रही थी, रियली ऑल एक्स एंड पेन्स। तो वो मेरा जो बैटमैन था जो मम्मी का होता था, मैंने दे दिया है फैजान वलिया को। तो ही केम, तो आई सेड भाई मुझे तो सख्त दर्द हो रहा है। ही यूज्ड टू इनवेरेबली हैव बैक प्रॉब्लम बिकॉज ही हैड टू पिक अप मम्मी मेनी टाइम्स, इनफैक्ट एवरी डे ही हैड टू पिक अप मम्मी को, उठा के व्हील चेयर पर बिठाता था, उठा के बेड पे लेटाना। सो ही यूज्ड टू इनवेरेबली गेट अ बैक स्प्रेन और समथिंग। तो ही सेड बाजी ये आपको मैं अभी दवाई ला के देता हूँ। सो ही वेंट एंड ही ब्रॉट दिस ब्रेक्सिट, बड़ी अच्छी दवाई। नहीं लेना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं कहा। this episode has been sponsored by ब्रेक्सिट। अच्छा तो आज मैं वो ले लिया, कल भी वो ले लिया, तो वाह जी वाह। फिर आज मैं फ्रेंड से मिली, कहती ये रोज रोज खाने की चीज नहीं है। wow. अच्छा तो कभी कभी तो खा सकते हैं ना। Yeah, I think it comes down to how beautiful you are inside and how happy you are inside. And then I think you can be that person with other people and they can actually, this can rub off on them. कि अच्छा Yeah. नहीं यार, कोई सिंसेयर है, इसके साथ भी मैं सिंसेयर होता हूँ। हाँ, वो अगला स्वीट है यार, नहीं मैं इसके साथ स्वीट होता हूँ। मतलब वही बात है ना कि जो आप करेंगे फिर आपको हाँ, वो it चीज़ comes मिलेगी, कभी back. ना कभी मिलेगी। हाँ कुछ लोग होंगे घटिया किस्म के कि जिनके साथ आप अच्छे भी हैं तब हाँ, भी वो वो भी है, बुराई ही वो भी है। करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे लोगों को इवेंचुअली वो फिल्टर आउट छाननी होती है ना, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं। एंड सो यू ट्रू। कांट इमेजिन कि अल्लाह ताला के साथ मेरी कैसी रिलेशनशिप रही है। उसने मुझे कैसे कैसे वक्तों पे किस तरीके से बचाया है, क्या क्या चीज़ें मेरे सामने आई हैं। मतलब इट वाज just जस्ट tell us one thing. वही बात होती है कि इंसान अच्छा मसलन when my husband died and everybody was coming for अफसोस and all that, मेरे पास दिला नहीं था, and वो टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा तो हम लोग, अच्छा हम देखने में ऐसे ही रहे हैं हमेशा, अंदर के हालात जैसे भी हो ना, हमें अगर आप किसी वक्त भी आप उस वक्त भी मिलते हैं तो यू वुड से कि वो ये तो बिल्कुल ठीक है। Hmm. क्योंकि हमने कभी सीरियसली, मैं आई ऑलवेज बिलीव दिस कि मैंने अल्लाह के सामने रोना है, अल्लाह के सामने फरियाद करनी है, उससे पूछना है, बंदे से नहीं पूछना। Hmm. ये बंदा क्या कर सकता है? True. यू सी, तो अल्लाह से मांगना। अम्मी डैडी ने मुझसे पूछना कि कैसी हो, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू फाइनेंशियली, आई एम फाइन। Even to them. Alhamdulillah. डैडी मतलब जो अभी बूढ़े माँ बाप है भाई, उनको मैं क्या बताऊँ। पहले अच्छा मैंने बताना शुरू किया, हम जब बता रहे अच्छा दिन में ये हुआ है, आई यूज्ड टू हैव गो थ्रू सच हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस। देन वी रियलाइज कभी अम्मी गिर रही हैं, कभी डैडी गिर रहे हैं, वी रियलाइज इट्स हर्टिंग देम, इट्स अफेक्टिंग देम। They're being worried. हम बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट एंड वी आर फाइन, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। So that's how we used to behave. अच्छा तो अंदर वो की क्या हालत थी। हाँ, वो मैं- फौत हुए तो खैर लोग आते थे ये वो, अच्छा बिकॉज हमारे साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें हो चुकी थी, तो फिर हम हर एक को शक करते थे। अच्छा तो एक ऑफिसर थे जो बार बार आते थे, आए ना, मतलब ऐसी, तो ही रियलाइज कि there's something मिसिंग, कोई गड़बड़ है ना। तो ही सेड अच्छा आई न्यू ऑल नजीब्स फ्रेंड्स, ऑल ऑफ हिज, ये क्या मैं नजीब का दोस्त हूँ। कब दोस्त, कहते नहीं हम शुरू शुरू में इकट्ठे थे, देन आई लेफ्ट द एयरफोर्स, तो मैं अब सिविल में हूँ। तो कभी आ रहे हैं, कोई आमों की पेटी लेके आ रहे हैं, कोई अच्छा बच्चे हर चीज़ में, ये क्यों लेके आया है ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा पता नहीं क्यों मैं कह नहीं, इसको अल्लाह भेज रहा है। आई जस्ट न्यू इट, देयर वाज नो डिफाइनिंग फैक्टर एक्सेप्ट कि हम लोगों को कभी वो डिनर पे ले जाते थे, एंड कभी आने रहते लाहौर में थे, यहीं रहते थे, वो आते थे जब तो हमें ज़रूर मिलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हो गया कि वी स्टार्टेड शेयरिंग अ प्रॉब्लम विद हिम, कि अच्छा उसे बताएं तो सही भाई मसला क्या है ये वो। सडनली ही मैनेज टू, ही वाज वेरी पावरफुल पर्सन, मुझे कुछ भी नहीं पता था उनका, आई हैड नो आइडिया एनीथिंग बट, और ये बिल्कुल था कि अल्लाह ताला उनको भेज रहे थे। और he came up with some papers which put me in such a strong footing कि आप
की सोच है. He brought full photocopies of all the lands that we owned Wow. in the villages, जो मेरे जो आपके पास भी नहीं थी. outlaws ने छुपाए हुए थे. अब it Wow. put us in such a strong position. वैसे भी हम strong position में थे. अब ये अल्हम्दुलिल्लाह. इस्लाम को तो वो यूज करते हैं ना औरतों पे जुल्म करने के लिए. जहाँ इस्लाम में कोई औरत का फायदा है, जैसे in her iddat she is not supposed to be she's to be provided by the in-laws. Hmm. She is Hmm. या उसके मर्द के घर में ही रहना है, उसने उन्होंने ही प्रोवाइड करना है. ये वो चीज़ें तो उनके जनाजे पे आपने कर्ज, शहीद की भी कर्ज जो होता है ना वो माफ़ नहीं होता. होता है ना. जी. तो कर्ज जो होता है, अच्छा भाई कम, अब मैं हस्बैंड के बिकॉज द हाउस आधा बना हुआ था, आधा ये तो कर्ज यू नो उस तरफ तो कोई आ ही नहीं रहा था. इधर सिर्फ कर्ज नहीं, कब्जा. अच्छा. Everybody was wanting to take kabza over everything. And then I get these papers in my hand. Wow. ये उस जात के अलावा कौन कर सकता था मेरे लिए. I didn't even know कि ऐसी कोई. तो भाभी ये टोटल अल्लाह का करम कि किस तरह अल्लाह ने देखा कि वल्नरेबल है, तो बस आप जम के डट के खड़े हो जाओ बस. अच्छा मुझे कोई देखे ना, कोई हंसता था. पैसा एक नहीं है, कर्जे लाखों के हैं, एक पाई नहीं है, हाँ. गैस नहीं है घर में, खाना नहीं पक सकता. लेकिन वो चूंकि अफसोस के लिए लोग आते थे ना, वो हर एक कुछ ना कुछ ले आता है, वो हम खा लेते थे. वो रिस्क पूरा हो जाता. बल्कि इतना हो जाता था कि हम वो प्लेट लेके बाहर भाग रहे होते थे कि कोई मिल जाए उसको हम खिला दें. और मैं रोज़ अपने मेज़ को देखती थी और मेरा दिल चाहता था कि मेरे दुश्मनों को मैं बताऊं कि राज़िक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, जितनी मर्जी कोशिश कर लो. कर लो, हाँ. वो है. अल्लाह अकबर. तो I just like you just know where it's coming from and thank him. And because of all that experience, I know how a poor man feels when he doesn't know where his next meal is coming from. That's where the food drives and all. Yeah. कि भाई किसी के लिए आप आसानी पे, किसी के लिए खुद भी अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करो, दूसरों के भी साथ साथ करो. एक अपनी प्लेट खाने की बना लो, एक किसी और की बना लो. यू नो एक प्लेट आपकी, चलो उसको आधी उसको दे दो, आपका भी पेट भर जाएगा उसको. And how are they going now? Like, is it still अभी तक चल रहा है? नहीं, I gave up everything. I mean those things जो मेरे पेपर्स आए थे सारे कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटल. हमारे कोर्ट्स माशाल्लाह. हाँ, केयरफुल होके हम बात करें. लेकिन yeah, it's There's sad. no hope from It is, them. There is no justice. Yeah. Sorry, coming It's from the courts. And ये मेरा personal experience है. और and the one there were 4 cases, right? One case I had done, 3 मेरे ऊपर हुए. उनको गुस्सा चढ़ेंगे है कि आ गई. अच्छा फिर the thing is कि I found out कि lawyers कितने liars होते हैं. They taught me every crooked way to get my house. And they brainwashed me into believing कि पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है. कि सीधे तरीके से नहीं मिलेगा. मैंने कहा हमने पूरी ज़िंदगी सच बोला और अब हम झूठ बना के झूठे हम अपनी ही write-ups चीज़ करें. के लिए. हाँ अपनी चीज़ के लिए. तो वो तो फेयर एंड फाउल वे तो हमें करना पड़ेगा, वरना तो हमें मिलेगा ही नहीं, अपनी चीज़ है. अच्छा उसके लिए अच्छा आई गॉट उस वक्त आई वाज आल्सो वेरी डेस्परेट. सही बात है, लेकिन आप जितने डेस्परेट हो गलत काम, शुक्र है अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी रोड़े आए बीच में और जो लोगों को मैं कर ली. एंड देन आई रियलाइज्ड व्हाट एम आई डूइंग. तुम अपने मिजाज के खिलाफ एक काम कर रही हो. और अगर मिल भी गया तो तुम्हें पता है ना कि तुमने कैसे लिया. अपने ज़मीर को तो पता है. अपने ज़मीर तो ये मेरे और मुझे भी पता है, मेरे बच्चों को भी पता है. हाउ डिड आई गेट इट? तो विल आई वांट इट लाइक दैट?
So halfway through, I backed out. नहीं, ये नहीं होगा. तो बहुत फिर मैं चेंज माई लॉयर, दूसरा लॉयर वो बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरी बातें भी लिख रहा था, मैं तो जी बड़ी राइटर हूँ, आहा हा किताबें लिख डाली ना केसेस की फजूल. एक कोई जज थे जो बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी मेरे केस को आगे किया एंड आई वन दैट केस एंड ही वाज शॉट, ही वाज किल्ड Whoa. एंड द बैड जज kept on and on staring at the roof and saying मैं क्या कर सकता हूँ. भाई आप क्या कर सकते थे, उधर बैठे क्यों इसलिए आप, व्हाट आर यू डूइंग हियर, जाओ इधर से, फाइंड समबडी एल्स. It's a sad reality of the system. डिस्गस्टिंग. और इतनी इनसिक्योरिटी, मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ, कभी शूटिंग हो रही है, कभी ब्लास्ट हो रहे हैं उधर. उसी ब्लास्ट में तो जज फौत हुआ था. जो Whoa. मेरे लॉयर का ऑफिस था उसमें बुलेट्स की मोरियाँ थी. उसका जो असिस्टेंट था उसको छोड़ गया था क्योंकि ही सेड इट्स वेरी अनसेफ ओवर हियर. I remember those F8 times. में. वो या पूरे पाकिस्तान में जी, एक तो ये हमारे अपने भी चल रहे थे. खैर फिर हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की. हमने कल लेना है तो ले लो. हम्म, अच्छा, मेरी फ्रेंड्स कहें कि तुम यू शुड फाइट फॉर योर राइट्स. मेरा कुक भी कहे कि नहीं नहीं, ये तो कभी तो वक्त बदलेगा और इंसाफ आएगा हमारे मुल्क में, तो फिर ये चीज़ें तो आपकी हैं. हम्म, तो मेरी फ्रेंड कहे कि तुम अपने हक के लिए जब नहीं लड़ोगी कोई तो और नहीं लड़ेगा. उनको गुनाहगार करोगी. देन दे विल गेट समथिंग विच इज एक्चुअली बिलोंग्स टू यू एंड दे विल हैव टू आंसर इट. तो वो तो और गुनाहगार बनेंगे. मैंने कहा फिर मैंने कोई ठेका लिया हुआ है? हम्म, अपने गुनाहगार और ना गुनाहगार मैं अपने कोई बचा लूँ तो बड़ी बात. हम्म. आई एम True. सॉरी. Every person ठीक for है, एवरीबडी हैज themselves. टू आंसर फॉर हिमसेल्फ. True. गो True. अहेड, कर लो भाई. मैं कौन सी कोई बड़ी एंजल हूँ? आई एम नॉट एन एंजल Hmm. and I don't pretend to be one either. But I will not get something illegally. Hmm. और फिर अल्लाह की शान देखिए. He is this man who comes, हमारी कॉलोनी का बंदा है, and he says कि मुझे एक पता है कि एक बेवा के साथ जुल्म हो रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ. And on paper he put the house on my. Allah. So खोलो पेपर्स, इसके मियाँ ने क्या लिखा है? मेरा नाम लिखा हुआ था. बस ठीक है, this is what he wanted, so we will do it. Out of the blue, I didn't even know that person. Wow. Yeah, the divine intervention. Like, वो अपने फरिश्ते इस तरह भेजता है. वो फरिश्ते अभी ही इज़ नो लॉन्गर. बल्कि जब मैं उनका थैंक यू करने गई ऑफिस में तो पता चला ही हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड. oh, उफ, मैं inna उनके घर lillahi. गई, मैं तो दाड़े मार के रोने लग गई उनके घर में. कहते इस तरह बड़े लोग आए हैं कि सच उन्होंने कितने काम किए थे ऐसे लोगों के लिए. इतने अच्छे लोग हैं. अभी वो यही कहते हैं ना कि अच्छे लोग हैं, इस तरह की तो दुनिया चल रही है. तो वो कहने लगे कि तो फिर लोग आप पे केस कर देंगे. उन्होंने कहा कर ले, मैं केस भी फाइल कर दूंगा. कंपनी पे केस कर देंगे, कर ले. एक जुल्म हो रहा है, मैंने वो नहीं होने देना. मेरे नीचे ये नहीं हो सकता. अल्लाह ताला उसके इतने दर्जे बुलंद करे कि बस. एक हदीस है कि इजाज़ साहब थे, इजाज़. हाँ, कि जो शख्स बेवाओं और यतीमों गरीबों के साथ खड़ा होगा और उनकी मदद करेगा, वो ऐसा है जिसने पूरी रात नमाज पढ़ी या रोज़े रखे या अल्लाह की राह में जहाद किया. इट इज़ सो अनबिलीवेबल हाउ ऑल दीज हमारा दीन कितना खूबसूरत है कि इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं टू टेक एवरीवन अलोंग, कि भाई पीछे ना रह जाए कोई, खुद नहीं आगे निकलना, भाई सारों को साथ लेके चलना. बिल्कुल बिल्कुल. सहारा बने, मोहब्बत का मामला रखें, इज्जत करें, और जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसके साथ खड़े हों. एग्जैक्टली. कम से कम उसके लिए थोड़ी सी तो आसानी पेश करें. जितना True. आप कर सकते हो उतना तो करें. So true. थोड़े से 2 कदम उसके साथ तो चले. So true. So true. अच्छा, नेक्स्ट फेज के अंदर we are going towards the end.
aging is a phenomena which no one can run away from, right? And हम जब यूथ में होते हैं या मिड लाइफ में भी होते हैं, हर साल ऐसे लग रहा होता है बस ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल उस वक्त तो लगता है कि कि पूरी 25 जिंदगी ऐसे ही स्पेशली रहेंगे. हाँ, वो ओल्ड पर्सन है वो ये like what would you like to tell people कि किस चीज़ का ख्याल रखें, किस चीज़ को for granted ना लें, like how do you take up this phenomena? देखें एज कैन बी अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, वेरी ब्यूटिफुल. और मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि 70-year-old पर्सन इज़ द हैप्पीएस्ट अच्छा. बिकॉज वो कहते हैं बिन दैट डन दैट. अब आप एक 25-year-old पर्सन के अच्छा भाई मतलब लाइफ पार्टनर कौन होगा, कैसा होगा, क्या होगा, वो सारे फियर्स होते हैं. यू बिन ओवर दैट. फिर चूजिंग द पार्टनर, फिर बच्चे, फिर वो कि बॉय होगा कि गर्ल होगा. अच्छा फिर जो भी है अल्लाह मियाँ सेहत वाला बच्चा पैदा करे, फिर वो हो गया. फिर उसकी हर दफ़ा जब उसको बुखार चढ़ता है, आप तो एक क़यामत में से हर दफ़ा गुजरते हो. It's so helplessness, हर बेबसी. थ्रू आउट. हम्म. अच्छा फिर इसी तरह फिर करते 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 फिर करियर हो गया, एजुकेशन, ये सब कुछ. यू बीन देयर एंड देन सो मच टू थैंक गॉड. अल्लाह का कितना इंसान शुक्र अदा. अभी हम बैठे हुए थे, अभी मैं अपनी फ्रेंड्स का, वी वर द रिलेटेड आर्ट्स डिपार्टमेंट 1977 में. हम अच्छा. 5 के Wow. रिलेटेड आर्ट्स डिपार्टमेंट होम इकोनॉमिक्स का था. आज तक हमारी वही दोस्ती है. Wow. 54 years from then प्लस 4 more years. हम जब पहले BSc में भी हम इकट्ठे ही थे, तो कितने हो गए? 58 years we have been together. Wow. And through thick and thin, any one of us had any problem, तो वो हम सबका प्रॉब्लम होता था. ये सारी, मैं चूँकि इस्लामाबाद में होती हूँ तो ये जी सब पहुँच जाती. मुझे कैंसर हुआ, ये सारी पहुँच गई. नी सर्जरी हुई, फिर ये सब पहुँच गई. मेरे फादर डाइड, तो मेरी फ्रेंड ने उधर दुआ मांगी, दुआ पढ़ी. हर सिचुएशन में यू नो दे वर देयर. हाँ कभी मैं, अब मुझे एडवाइस करने के लिए, फिर माई हस्बैंड डाइड, तो ये सारे, और दुआ के लिए सारे लोग हैं, घर में भरा हुआ है सारे लोग. इन्होंने मुझे कमरे में बंद किया कि शीरीन खबरदार भी तुमने सोचा भी ना कि तुम अकेली उस घर में रहोगी, अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में, तुम कैसे एक लड़की बेटी के साथ अकेली रह सकते हो. खबरदार चुप करके जाओगे अपने माँ बाप के पास रहना. Hmm. मैं उनकी बात सुनी, दिल में मैं पक्की थी रहोगे ये तो तो इधर ही. मैं सुनूंगी. हाँ. मेरा घर है ऐसी की तैसी. हाँ. तो एंड हु वाज माय बिगेस्ट दिस पर्सन वाज, खैर मैं जैसे कह रही हूँ कि बैक टू द थिंग एज का, कि सो ब्यूटीफुल हमारी कोई मेमोरीज है. एंड अच्छा एज की जो एक और बात है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी. बी रिस्पॉन्सिबल. अल्लाह ताला की सबसे बड़ी देन है आपका दिमाग, आपका जिस्म. इसका जितना ख्याल कर सके करें. नो ड्रिंकिंग, नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग. ठीक है, छोटी मोटी चीखें हर एक छोटी मोटी कर लेता, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट. Hmm. ऐसी चीज़ें मत देखो. इट्स बीन साइंटिफिकली प्रूवन. नहीं जी, यूथ है ना, तो अभी तो हम रिकवर कर सकते हैं, ट्राई अभी तो हम करिए बहुत कुछ कर सकते हैं. हाँ तो अच्छा नहीं जी, खैर है, कुछ नहीं होता. हाँ अच्छा ये मेंटालिटी है. कुछ नहीं होता. दूसरा ये था कि मुझे ना, मैं सख्त डेंजरस बच्ची. आई वॉज सो आउटरेजस, सख्त एडवेंचरस. और आई यूज टू, ये जो नहीं होते घर की जो पैरापेट्स होती है ऊपर, मतलब एक बिल्डिंग है उसका यूं करके, तो ये 4 इंच 4.5 इंच की दीवार होती है. चांदनी रात में कोई 20 फीट आप, उस पे जी मैंने वॉक करनी होती थी. चल के जाना है मैंने उधर तक. कोई गेट है उसके ऊपर किनारे पे, ऊपर से मैंने चल के जाना है. हर किस्म का उल्टा काम मैंने करना होता है. फिर ऑफ कोर्स अम्मी से छुप के, और स्किडिंग करना, मुझे भी जाना ना, स्किड करना मुझे बहुत शौक था. हर वक्त जॉगर्स पहनना और स्किडिंग, यू नो, स्लिपिंग ऑन द फ्लोर एंड देन लैंडिंग ऑन द नीज. मैं अब हाँ. देख रही हूँ जो मेरे नीज को प्रॉब्लम हो रही है. हाँ.
आई वॉज वेरी रूथलेस विद माई नीज एंड आई यूज टू बी वेरी प्राउड कि मेरा एक जख्म ख़त्म नहीं होता तो दूसरा जख्म चढ़ जाता. आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट. तो ऐसी चीज़ें बेवकूफ़ियाँ होती हैं. हाँ मैं तजर्बे से बता रही हूँ. सीरियसली. Wow. हाँ, we all do stupid things, you know. I'm not saying I was very wise. नहीं, it's amazing how you can हाँ. connect it now कि ये जो अब घुटनों का मसला है उस वक्त मैं रगड़े ना हाँ. मारती तो हाँ ना भैया. शायद बेहतर होता. या एंड वही तो चीज़ है. आप सोचते हो कि मैं तो हमेशा ही ऐसी रहूंगी. हाँ कि रिकवर कर हाँ. जाएंगे, अभी हील हो जाएगा, जी. मतलब ऐसे ठीक हो जाएंगे. मैं तो कर सकती हूँ. I can get away with it. And life It changes passes and so like quickly. But I think life is just beautiful. अल्लाह ताला की सबसे बड़ी देन है. एंड नेवर एवर जैसे सुसाइड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं. थॉट्स ऑफ सुसाइड, डिप्रेशन. मैं किस चीज़ का डिप्रेशन यार? अल्लाह ताला की नेमतें तो गिनना शुरू करो. आज सुबह के अंडा जो नाश्ते में खाया है ना, उधर से लेके किस नेमत का हम शुक्र अदा करें. so वो true. फूल जो खिलता है आपकी तरफ खिला हुआ है, इट्स लुकिंग एट यू. उसकी फ्रेग्रेंस, चिड़ियों का चहचहाना, ये आपके लिए है. किसके लिए बनाया अल्लाह मियां ने? हमारे लिए बनाया. True. कितना ये प्यार. माय डॉग, शी लव्स मी सो मच. वो पागल हो जाती है मुझे देख के. वो इतनी खुश हो जाती है, यू नो. अब किसी को देखो, कोई दिल से आपको दुआ दे रहा है. अब उसके दिल में तो कोई दे रहा है आपको दुआ, तो इससे बड़ी कोई चीज़ है? True. माँ बाप दे रहे हैं ना आपको दुआएं. कितनी बड़ी नेमत. Why are बहुत you बड़ी. doing this to them? How can you disregard that body which God has given you? ये आपकी सबसे बड़ी इमानत है. Look after it. लोग बड़ा कुछ, वही बात है ना, नज़रिए की बात है, लेकिन कि जी इतनी तकलीफ में होते हैं कि हर चीज़ भूल जाते हैं. बट बात वही है कि यही तो इम्तिहान है उसी वक्त कि तो याद उस, करना है. हाँ, कि उस सारी तकलीफ जो आपको लग रहा है कि यार बस ज़िंदगी ख़त्म होगी तो ये ख़त्म होएगी, जी. तो उस वक्त आप, यही इम्तिहान है कि उस वक्त आप सोचें कि जो अभी मेरे पास चीज़ें हैं वो बड़े मैनी पीपल वुड किल टू बी इन दैट पोजीशन. दिन में आपने सुबह अंडा भी खाया ना, अभी ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर जो तरस रहे हैं उसके जो लिए. तरस रहे हैं कि सुबह का नाश्ता मिल जाए. देखो ना इस वक्त as we speak पैलेस्टाइन में क्या What is हाल है. happening and what happened few days ago as well. आपको नहीं पता, मतलब have we ever imagined being in a state in which we don't know अगले दिन मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ. रात को कोई बॉम्ब गिरेगा, मैं मर जाऊंगा. Would I have, मैं अगले दिन का पहली मील मिलेगी नहीं मिलेगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा. पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो. मतलब ये हम फैथम भी नहीं कर सकते, लेकिन people living through it. people are living through it. वो तो अपने है ही बच्चों को जन्नती देखें. लोग हैं जी. सबसे बड़ा जो टॉर्चर है कि अपने बच्चों को तकलीफ, वो कोई नहीं देख सकता. नो. Yeah. तो मैं तो बस यही कहती हूँ. जरा अभी भी हम बैठे हुए थे, हम यही कह रहे थे हम किस किस चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करें. अच्छा, जब मुश्किल भी आती है, जब कैंसर होता है, कोई भी मुश्किल आती है, फौतगी होती है आपके घर में. माई मदर पास्ड अवे लास्ट ईयर. इट वाज अ वेरी बिग ट्रॉमा फॉर मी, बट आई थैंक टू गॉड. और मैंने पहले सुना था कि ये जो अरब लोग होते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी की मौत की खबर सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं. तो मेरे दिल में ये आई थी कि अल्लाह करे कि मुझ में भी इतना बड़ा दिल हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकूं. तो ये कि now they're at a better place. Yeah, at a better place, yes. उनका इंतजार खत्म हो गया. And I had my mother for 67 years. How many people can say that? कुछ तो मेरे पैदाइश से पहले my mother lost her mother. उनकी शादी हुई उसके बाद she never saw her mother. Such a मुझे, blessing. हाँ, अब as an only child, I had the privilege, the honor of taking care of my parents. This was my biggest wish. भैया, I'm an only child. कहती थी नहीं, I should be there
till the end of their lives. ठीक है ना, Hmm. मेरी जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने मेरी उसने उसने किया ना. आई कुड हैव पॉप्ड ऑफ एनी टाइम. ठीक है ना. Amazing. तो ही डिड इट. तो अल्हम्दुलिल्लाह, Alhamdulillah. हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह. It's such these things are this is life. This is Yes. the reality of life. हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं सारी चीज़ें कि ये गुजरनी है इन चीज़ों से. इन मतलब ये वो ऐसे लम्हे हैं जो which will matter. बिल्कुल. Which will और हम अभी लगे हुए हैं अच्छा यार वो अगला क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मैंने कैसे कपड़े पहने हैं. मतलब इज द frivolous petty things that we care about and then we start to ponder on them, overthink कि अच्छा यार, लेकिन It doesn't matter. life is doesn't matter. So true. So true. आज सुबह ये हुआ ना, मैं इस्त्री हो रहे थे मेरे कपड़े, तो उन्होंने कहा ये तो सूट आप पहन ही नहीं सकती, इसको तो दाग लगे हुए. ये तो अभी तो 2 दिन पहले, ये तो बिल्कुल आई वांट टू वेयर दिस सूट. ओके, उसने कहा दाग लगे हुए. तो मैंने कहा लगे रहे, मेरी सहेलियों से क्या छुपा हुआ, अगर वो देख भी ले सो व्हाट. Hmm. भाई वो मुझसे मिलने आ रही है. दे डोंट केयर अ डैम कि Yeah. मेरे शर्ट पे है कि नहीं. आई डोंट केयर अ डैम कि उनकी शर्ट कैसी है. आई डोंट इवन नोटिस. Yeah. सीरियसली मुझे याद नहीं रहता. Hmm. आई नोटिस द फीलिंग आई हैव व्हेन आई एम विद. That's what matters. That's what matters. Acha, so we've talked about age, we've talked about you have emphasized on physical health as well कि उसका ख्याल रखें. इमानत है, इमानत. The last question I would like to ask you, and do we ever heal from pain? Is there ever anything called as fully healed? Do we ever heal from grief? दो टाइप्स ऑफ पेन्स है. एक इमोशनल और एक फिजिकल. और Right. दोनों गुजरते हैं. हमने दोनों से गुजरना है. दोनों से गुजरना है. फिजिकल तो जब ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो भी एक थोड़ी सी वीकनेस छोड़ता है, उसका एक इम्पैक्ट रहता है. और यही इमोशनल ग्रीफ का है. लेकिन मैंने उस दिन यही सोचा कि नाउ आई हैव टू थिंक हियर एंड नाउ. इससे आगे पीछे सोचने की हमें ज़रूरत नहीं है. वरना एक एंडलेस लूप है जिसका कोई इख्तिताम नहीं है. बिल्कुल. मैं सिर्फ आज का, इस लम्हे का के लिए ज़िम्मेदार हूँ, और मेरी सोच भी इधर ही तक होनी चाहिए. हाँ, जब हो रहा होता है उस वक्त आप पूरा ख्याल रखें. ठीक है, वो आपने किया, जितना कर सकते थे कर लिया. यू डन इट, बिन देयर डन दैट. क्लोजर करें एंड देन मूव ऑन. एज आई सी इट, माई मदर इज़ नाउ विद माई फादर. वी गो. और जहान में जिस तरह से वो गई हैं, अल्लाह ताला ने उनको फूलों की तरह उठाया. और मेरे दिल से एक चीज़ थी कि मैंने कहा अल्लाह मियाँ, अगर वो टाइम आया तो मेरी माँ को तूने फूलों जैसे उठाना है. अल्लाह. That's what he did. What have I to say to God? Except thank you, Alhamdulillah. Alhamdulillah. And I am blessed to have such beautiful memories. और मैं you go, oh, she would have said, oh, what nonsense. किसी भी चीज़ पे. तो just pain जो है वो grief का जो है, you have to control it. Otherwise it can sweep you off. Yeah. हाँ. It has that power, Yeah. but you have to Yeah. overpower it. अब मैंने तो सारे ग्रीफ देख लिए सीरियसली. लेकिन हर चीज़ का एक आई जस्ट लुक फॉर द थिंग्स टू थैंक अबाउट इन ईच केस एंड देन मूव ऑन. That's such a beautiful suggestion. And with this, I would like to wrap it up because I would have gone for like 2 more hours with you. It's so much freshness that you bring. MashaAllah, Allah Ta'ala आपको सेहत दें, आपको बहुत खुशियाँ दें, you and your family. And it has been such a lovely experience talking to you. May God bless you. May God help you bring about this joy and freshness to everyone's life, and whoever listens to you. I hope your voice reaches the whole world, inshallah. And it was such an honor having you here.
Thank you was so much. It Thank was you an so honor much. for being called also, and thank you so much. Thank God bless you.